राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। I think something properly. होते हैं भगवान के जो वैष्णव होते हैं वही हमारा एकमात्र सहारा है। They are our main shelter. So this Vaishnav bhajan is about offering prayers to the Vaishnavas. So let's sing this. I would need one volunteer. Love can come here and do next. अच्छा, you are playing middle. The font is not going properly. Is not coming in. Actually, this new laptop does not have those fonts. Anyway, I think at least something will be there to refer. They will understand. So थोड़ा font missing है, उसके वजह से display थोड़ा गड़बड़ आएगा. But at least you will be able to follow. It's a very simple bhajan to follow. Okay. एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुम बिना के होना,
श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padamalam Shri Guru Vaishnavamsha Shri Rupam Sagar Jatam Sagana Raghunatham Tam Sajivam Savadekam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhamritamscha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Veshakarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gauravishe Namah He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapya Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Krishnanusude Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. So we welcome everybody to this yet another Sunday morning program, रविवार प्रातः कालीन प्रोग्राम कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। ओके, तो पहले जल्दी से ये जो भजन हमने गाया है इसका मीनिंग देख लेते हैं, क्योंकि भक्ति में अगर हम कुछ भी करें बिना मीनिंग जाने तो उसका लाभ है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। लेकिन अगर मीनिंग जान के करें, if we know the meaning and then do things, तो उसका लाभ कम है कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा, ऑब्वियस है। जब हम बिना मीनिंग जाने कुछ करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज रिचुअल। जब मीनिंग जान के करते हैं दैट बिकम्स स्पिरिचुअल। सो रिचुअल प्लस मीनिंग इज इक्वल टू स्पिरिचुअल। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर जो हमारे वैष्णव आचार्य हैं, जिन हम में से जो भक्त वृंदावन यात्रा में आए थे, फिर रिमेंबर हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ वैष्णव आचार्यों के बारे में, लोकनाथ गोस्वामी, बल्देव विद्याभूषण, विश्वनाथ ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, लाइक दैट। तो प्रभुपाद बताते थे नरोत्तम दास ठाकुर के जो वैष्णव गीत हैं, जो वैष्णव भजन हैं, दे आर एज गुड एज वैष्णव वैदिक लिटरेचर्स। ये जो है ना, ये नॉर्मल जैसे कोई इधर उधर के कोई व्यक्ति अगर कोई भजन गाता है, अच्छी बात है, विद फुल रिस्पेक्ट, अच्छी बात है। लेकिन अगर जब शुद्ध भक्त कोई भजन लिखता है, तो जब शुद्ध भक्त भजन लिखता है तो व्हाट दे आर डूइंग इज, उनकी जो चेतना है दैट दे आर पुटिंग इन दैट सॉन्ग। दे आर नॉट राइटिंग फॉर नेम फेम और ग्लोरी। दे आर नॉट राइटिंग कि हाँ 5000 साल बाद 100 साल बाद कोई भक्त लोग मिलकर मेरा भजन गाएंगे। दे आर नॉट राइटिंग, इट्स देयर स्टेट ऑफ माइंड। तो ये जो वैष्णव भजन है वो उनका स्टेट ऑफ माइंड है। तो जब हम वो दोहराते हैं या जब हम वो याद करते हैं तो उनकी चेतना हमारी चेतना को प्रभावित करती है, विच इज व्हाट वी वांट। हम यही चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे एक आर्टिस्ट, पेंटर होता है आर्टिस्ट, आजकल भावना माता जी आईपैड में बनाती हैं, लेकिन पहले ब्रश वगैरह से बनाती थी। तो जो पेंटर होता है उसकी चेतना पेंटिंग में चली जाती है। ऐसा एक उदाहरण दिया गया है शास्त्रों में। जो पेंटर होता है जब चित्र बनाता है, पेंटिंग करता है, तो उसकी चेतना पेंटिंग में चली जाती है। सिमिलरली जब कोई खाना बनाता है तो उस खाने में 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। देयर आर 3 इंग्रेडिएंट्स इन फूड। वन इज द ग्रॉस मैटर। ग्रॉस मैटर मतलब जो भी ग्रॉस मैटर है, वो कार्बन का जो भी कंपाउंड है, वो तो स्टूल बन के निकल जाता है।
दूसरा है उसमें विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीजें। तो ये सब तो हमारे शरीर को पोषण देती हैं, इसलिए बैलेंस डाइट खाना चाहिए। तीसरा इंग्रेडिएंट है चेतना, जो हमारे चेतना को प्रभावित करती है। आपने सुना है जैसा अन्न वैसा मन। तो ये खाली बोलने और कहने की बातें नहीं है, दीज आर फैक्ट्स, दीज आर फैक्ट्स। और अगर हमको अपने भक्ति में प्रगति करनी है तो हमें इन सब बातों पे ध्यान देना है, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें। और ये ध्यान देंगे तो धीरे धीरे हमारा भक्ति का जो जीवन है सरल हो जाएगा, इट विल बिकम वेरी सिंपल। अदरवाइज वी विल क्रिएट कॉम्प्लिकेशंस इन अवर लाइफ। हम सोचेंगे जब में ध्यान क्यों नहीं लग रहा है, सोचते रहेंगे क्या करना है, नहीं पता चलेगा। पर प्रभुपाद ने बताया है ये अगर आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, हमारा आहार शुद्ध होगा तो हमारी चेतना शुद्ध होगी। तो ये सिमिलरली जब हम वैष्णव आचार्यों के भजन गाते हैं तो उससे हमारी चेतना प्रभावित होती है। सो दे आर वेरी नाइस। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया, एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। किसी को प्रॉब्लम समझ में, एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, हे वैष्णव गोसाई प्लीज करुणा करिए। पतित पावन तोमा बिना केहो नहीं। मैं तो बहुत पतित हूं पर आप कम थोड़ी है। यू आर नो लेस, यू आर, आई एम पतित, यू आर पतित पावन, एंड देयर इज नो अदर पतित पावन लाइक यू। आप बहुत अच्छे पतित पावन हैं। हम लोग जब वैष्णवों को प्रणाम करते हैं तो क्या प्रणाम बोलते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च। वैष्णव जो है वो कृपा के सागर हैं। पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णव। ये बाई चांस नहीं है कि ये चीजें इधर से उधर सब कनेक्टेड है, क्योंकि एब्सोल्यूट ट्रुथ तो वही है। चाहे ये आचार्य बोले, चाहे वो आचार्य बोले, चाहे भजन में लिखा हो, चाहे श्लोक में लिखा हो, चाहे वेद में लिखा हो, उपनिषद में पुराण लिखा हो, इससे हमारा फेथ और बढ़ता है कि अच्छा द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर सेम ऑल अक्रॉस। चाहे रामायण की कथा हो, चाहे महाभारत की कथा हो, दीज थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड लाइक दैट। पतित पावन तुम बिना क्यों नहीं। बहुत अच्छा है। जहार निकट गेले पाप दूरे जाए। अगर हम किसी वैष्णव के पास जाते हैं ना तो पाप भाग जाता है और हमारा एग्जिस्टेंस शुद्ध होता है। इसलिए जब भी कोई वैष्णव हो, हमसे सीनियर जब भी कोई वैष्णव हो, हमें उनका संग लेना चाहिए हमेशा, पाप दूर चला जाता है। एमोन दयालु प्रभु केवा को था। इतना दयालु व्यक्ति कहाँ मिलेगा, ऐसा दयालु मास्टर हमें किधर मिलेगा, इतना बढ़िया दयालु मास्टर कि जिसके पास जाने से पाप दूर चला जाए। हम चाहते ना पाप दूर चला जाए हमसे, क्यों चाहते, क्या प्रॉब्लम, पाप ने ऐसा क्या काम किया, पाप ने ऐसा क्या पाप किया, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई वी वांट दैट वी शुड बी सिन फ्री। Then only we could progress. Yeah, but even more direct. What is the problem with sins? Suffering. दो प्रॉब्लम है, एक तो भगवान नाराज हो जाते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता, हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो पहला कारण भगवान है। दूसरा कारण है कि पाप करेंगे तो अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। We are creating problems for us in future. How many of you like full of problems? हाथ खड़ा करिए। अरे एक प्रॉब्लम कम नहीं, मेरे जीवन में और 1000 प्रॉब्लम है। How many of us like that? नहीं, हम चाहते हैं हमारा जो लाइफ है वो सिंपल हो जाए, सरल हो जाए। तो पाप मत करिए, पहले का जो हुआ उसका कुछ नहीं कर सकते, अब से ना करें। करेक्ट? बिकॉज द मोर वी आर डूइंग सिंस, द मोर वी आर क्रिएटिंग प्रॉब्लमैटिक फ्यूचर फॉर आवरसेल्व्स। तो वी हैव टू बी कन्विंस्ड ऑफ दिस। सोचिए कोई गरीब व्यक्ति, उसके पास खाने पीने के लिए पैसा नहीं, हम चाहेंगे ऐसा फ्यूचर हो हमारा? हम नहीं चाहेंगे, तो क्यों पाप करें? सोचिए हमारे हाथ पैर कट जाए एक्सीडेंट में, अल्टीमेटली हम सब जानते हैं ऑल दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कर्मा। भगवद गीता का जो कोर्स हमने किया उसका मेन पर्पस ये नहीं था कि हाँ कोर्स हो गया तो भी हमारा ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। उसका मेन है कि उनको हम हमेशा स्मरण रखें। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दोस थिंग्स व्हाटएवर वी हैव लर्नड इन भगवद गीता, दैट वी आर क्रिएटिंग लॉ ऑफ कर्मा। तो हम जो आज कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमको भुगतना पड़ेगा। तो हम ऐसा काम करें जिससे कि हमारी लाइफ आगे प्रॉब्लमैटिक ना हो। तो अच्छा, अगला, गंगा परश होइले पश्चाते पावन। गंगा जी जो है बड़ी पवित्र है। आपको पता है लोग दूर दूर से गंगा स्नान करने जाते हैं। आजकल ये सब कोई नहीं करता है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है संस्कृति, कोई पास ऑन ही नहीं करता है। जो अभी का जनरेशन है नालायक है, और इसके पिछले की जनरेशन नालायक होना शुरू हो गई थी टीवी सीरियल की वजह से और इस सब की वजह से। फिर अभी जब टीवी भी चला गया तो हमको लग रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन इंटरनेट तो इज इवन मोर डेंजरस। एटलीस्ट उसमें क्या होता था, फ्राइडे आधा घंटा या मंडे 1 घंटा, वॉट एवर इट मे बी, एंड ओनली अकॉर्डिंग टू दैट डे एंड टाइम यू विल वॉच। अभी क्या है, एनी टाइम एनी डे एनीवेयर, कट ओनली मोबाइल, ऊपर नीचे, राइट? इट इज मच। और उसी समय जो इंटेलिजेंट लोग होते थे ना, दोज हु वर इंटेलिजेंट in 80s and 90s, they had already started saying that oh TV is like idiot box. You have heard this?
TVs, idiot box and all that. Now imagine how much more is that true for mobile phones. There at least there was still some discipline and regulation. Regulation मतलब क्या? ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम. That is regulation. जैसे गैस सिलेंडर होता है किचन में. सी भक्ति के जीवन में रेगुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. मोस्ट इंपॉर्टेंट, खास तौर से हाउस होल्डर्स. हम लोग जंगल में जाके तपस्या तो कर नहीं रहे, घर में रह रहे, मजा कर रहे, आराम कर रहे. ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो कंट्रोल करना पड़ेगा. जैसे गैस, जो महिलाएं जो कुकिंग करती हैं, दे नो कि अगर गैस सिलेंडर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? रेगुलेटर. सोचिए आप रेगुलेटर हटा दो और खाना पका रहे हैं, क्या होगा? एक्सप्लोजन हो जाएगा. गैस वही है, फायर वही है, लेकिन अगर रेगुलेट नहीं किया तो एक्सप्लोजन. रेगुलेट किया तो you can use it for nice purpose. Similarly, our enjoyment, sense gratification, our eating, our sleeping, our working, our recreation, all this should be regulated. Regulation में क्यों गया मैं? Anyway, so हाँ हाँ तो इम्पोर्टेंस, हाँ ये मैं बता रहा था यार. सो टीवी, इडियट बॉक्स, मोबाइल फोन. सो प्रॉब्लम इज दैट वी आर नॉट पासिंग डाउन थिंग्स टू द नेक्स्ट जनरेशन अनलेस वी अंडरस्टैंड हाउ विल वी पास ऑन. पूरा विनाश की तरफ जाएगा सब कुछ. विनाश, ऐसा विनाश कि वी कांट इमेजिन, एंड इट्स ऑलरेडी हैपनिंग. एंड प्रॉब्लम इज अनफॉर्चुनेट, इलिटरेट, अनएजुकेटेड पीपल, इवन विद बिग डिग्रीज, दे डोंट अंडरस्टैंड दैट दे आर थिंकिंग दैट दे आर बीइंग मॉडर्न. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम. देखिए सतयुग में भी ऐसा नहीं था, पाप नहीं था, बहुत पापी लोग उस समय भी थे, पर क्लियर था ये पाप है, ये पुण्य है, ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए खराब है. वह सतयुग में भी था, त्रेता युग में भी था, द्वापर युग में भी था. कलयुग में डेंजर क्या है? ये डेंजर नहीं है कि पाप है, पाप है ठीक है, हम दूर रहेंगे उससे. द डेंजर इन कलयुग इज पाप जो है अट्रैक्टिव लगता है. Sin is fashionable. That is the problem with Kali Yuga. You see the point I am trying to make? It's a very deep point. The problem is not sin. The problem is that the whole civilization is tempting us to do sins, and it is being made to look wonderful. Anyway, तो गंगा परश, तो ये हम जानते हैं कि हमारी संस्कृति से गंगा जो है बहुत पावन नदी है. 7-8 पावन नदियां हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु. Like these are very very pure rivers, very holy rivers. तो उसमें से गंगा को बहुत सर्वश्रेष्ठ माना गया है. तो गंगा के जब आप टच करते हो, स्नान करते हो, तभी पवित्र होते हो. गंगा परश हो गया पश्चाते पावन, उसके बाद आप पवित्र होते हो. लेकिन वैष्णव गंगा जी से ऊपर है. तुम्हारा दर्शन पवित्र करो, यही तुम्हारे गुण. आपके तो खाली दर्शन करने से हम पवित्र हो, गंगा जी को तो टच करना पड़ता है. आपके खाली दर्शन करने से हम पवित्र हो जाते हैं. जब भी हम किसी होली नदी में स्नान करने जाते हैं, हमारा पहले पैर टच नहीं होना चाहिए, पहले बाहर दंडवत करना चाहिए, फिर जाना चाहिए. ये भी बड़े मजेदार लाइन. हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम. अगर भगवान हरि के प्रति अपराध किया तो हरि नाम बचा लेगा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. इसका मतलब ये नहीं कि हम अपराध करें, पर कह रहे हैं कि गलती से अगर अपराध हो गया तो हरि नाम बचा लेगा, क्योंकि हरि नाम भगवान से ज्यादा दयालु है. You know, holy name is even more merciful than Krishna. But danger, warning. तोमा स्थान अपराध है. किस कौन, या तोमा कौन है, किसके ऊपर, किसको बोला जा रहा है? वैष्णव को. एक वैष्णव के प्रति अपराध अगर कर दिया, तोमा स्थान अपराध है, ना ही परित्राण गया वन केस. वो केवल वो वैष्णव ही बचा सकता है. तोमा स्थान अपराध है, ना ही परित्राण. यही आज का टॉपिक है, उस पे आते हैं हम लोग. गंगा, अरे हाँ, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम. एक वैष्णव के हृदय में हमेशा भगवान रहते हैं. हमारे हृदय में भी रहते हैं, सबके हृदय में रहते हैं, पेड़ पौधे के भी हृदय में रहते हैं. पर यहाँ इसका मतलब क्या है कि he is conscious of his presence. गोविंद कहे ना मोरा वैष्णव प्राण. और गोविंद क्या बोल रहे हैं कि वैष्णव मेरा लाइफ है, वैष्णव इज एवरीथिंग फॉर मी. प्रति अब नाउ नरोत्तम दास ठाकुर इज सबमिटिंग हिज प्रेयर. व्हाट डज ही वांट? ही इज सेइंग प्रति जन्म में कोरी आशा. देखिए जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो मुक्ति की कामना नहीं करते हैं. दे डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. ऑल दे वांट इज सर्विस ऑफ कृष्णा, लोटस फीट ऑफ कृष्णा. देन मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड सब सेम है.
कैवल्यम नरकायते दश पुराकाश पुष्पायते दुर्दांत इंद्र काले सर्पपतिनि प्रोत्कादंस्त्रायते विश्वम पूर्ण सुखायते। एक जो शुद्ध भक्त होता है उसको तो ये पूरा विश्व भी बहुत बढ़िया लगता है, मंगलमय लगता है, उसके लिए इसमें और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई फर्क नहीं है। व्हाई? बिकॉज़ हिज कॉन्शियसनेस इज ऑल अबाउट सर्विंग कृष्णा एंड लविंग कृष्णा, व्हिच इज व्हाट हैपेंस इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, राइट? सो इसलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं, हर एक का यही देखा है हमने, हर एक का, चाहे परीक्षित महाराज प्रे कर रहे हो तो भी यही बोल रहे हैं, ध्रुव महाराज प्रे कर रहे हो तो भी यही बोल रहे हैं, कुंती महारानी प्रे करे तो भी यही बोल रहे हैं, मतलब फैक्ट है। They are all saying like that. प्रति जन्म में मेरे को जन्म दे रहे हो हर बार, लेकिन एक डिजायर पूरी कर दीजिए। हर जन्म में, प्रति जन्म में कोरी आशा चरणेर धूलि, आपके चरण की धूलि किसकी? वैष्णव की। नरोत्तम करो दया आपनार बोली, प्लीज मेरे ऊपर दया करिए। नरोत्तम दास ठाकुर आपको ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। वेरी नाइस भजन, वी शुड रिमेंबर दीज भजन्स। ओके, आई वांटेड टू क्विकली, ओके चलो इसमें चलते हैं, लेट्स गेट इनटू टुडेस टॉपिक। What are we discussing these days Sunday morning program में? Of course कभी-कभी वो चेंज कर देते हैं हम टॉपिक, ब्रदर कृष्ण प्रभु के मूड के ऊपर चेंज हो जाता है कभी-कभी, बट अदरवाइज he only said that we should be doing nectar of instruction series। तो हमने उसमें पहला श्लोक किया था, we'll all recite together, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम एतान वेगान योविषहेत धीरा सर्वां इमां पृथ्वीं सशिष्यया। इसका टाइटल अगर देना है तो क्या देंगे? इस श्लोक का अगर शीर्षक देना है, इस श्लोक को अगर टाइटल देना है तो क्या टाइटल देंगे आप? क्या है ये श्लोक? 6 urges to be controlled, 6 वेग है जो कंट्रोल करना है। वापस इसमें नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर मैं वापस फंस जाऊंगा। ओके, सेकंड, मतलब जो अगर कोई साधना भक्ति के पथ पर है, जो साधना कर रहा है, साधना मतलब क्या? हंसी खेल मजाक। लता मंगेशकर से पूछिए साधना मतलब, सचिन तेंदुलकर से पूछिए साधना मतलब, जो फिल्म स्टार एक्टर एक्ट्रेसेस लोग हैं उनसे पूछिए साधना मतलब, उनकी भी साधना होती है। 8-8 घंटा जिम में जाते हैं। इफ वी हैव टू बिकम सक्सेसफुल वी नीड डिटर्मिनेशन। खाली मजे से पढ़े हैं, जैसे पिछले बार प्रशिक्षण को कितना बढ़िया बताया था, माइंड चाहता है शांति, शरीर चाहता है सुख, आनंद है, मजा, और सेंसेस जाता है, और शरीर चाहता है आराम, और सेंसेस और इंटेलिजेंस चाहते हैं मजा, और मन चाहता है शांति। इस चक्कर में हम पागल बने हुए हैं, लाइक दैट। सो ऐसे साधना नहीं होती है। साधना के लिए थोड़ा अपने ऊपर नियम लगाने पड़ते हैं, डिटर्मिनेशन करना पड़ता है। कोई दूसरा फोर्स नहीं करेगा, हमें करना पड़ेगा ऐसा, क्योंकि हमारे लिए अच्छा है। तो अब ये जो रूप गोस्वामी इन श्लोकों में बता रहे हैं वो नियम क्या है, क्या चीज, व्हाट आर दोस थिंग्स व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ साधका। तो ये पहला है, हमें ये 6 अर्जेस कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा क्या है, इस श्लोक का टाइटल क्या है? 6 things which are unfavorable for भक्ति। हम सब भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि भाई ये 6 चीजें हैं जो भक्ति में आपको आगे बढ़ने नहीं देंगी। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर् विनश्यति। ये वो चीजें थी, 6 things unfavorable for Krishna consciousness। फिर तीसरा श्लोक क्या था? उत्साह निश्चया धैर्य तत्तत् कर्म प्रवर्तना संगत्यागा शतो वृत्ते षड्भिर्भक्तिर् प्रसिद्ध्यति। These are 6 things जिससे हमारी भक्ति में उन्नति होगी, प्रगति होगी। Again we will not get into details, नहीं तो फंस जाऊंगा। ओके, फिर हमने फोर्थ, तो वो तीसरा था। अब ये फोर्थ में हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारे जीवन में भक्तों का महत्व। कोई अकेला सोचे घर बैठ के मैं ये तीनों काम कर लूंगा, हाँ मैं वाचो वेगम क्रोध वेगम कर लूंगा, मैं अत्याहार प्रयास ये सबसे बच के रहूंगा, एंड उत्साह निश्चय वेगम करूंगा, इससे भक्ति नहीं होगी अकेले घर में बैठ के। ये तीनों श्लोकों से नहीं होगी, क्योंकि कैसे क्या चाहिए हमें? भक्तों का संग। वी वांट एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, बिकॉज़ इन कलियुगा वी कैन नॉट मेक प्रोग्रेस अलोन, एंड देयरफॉर immediately Rupa Goswami now in the 4th shloka he is talking about कि हम भक्तों के संग में आ जाएंगे। in last class if you remember we discussed a lot of details about भक्तों का संग क्यों जरूरी है, और भक्तों के संग में हमें किन बातों का ध्यान रखना है, और भक्तों के साथ जो प्रेम का आदान प्रदान करना है उसका फाउंडेशन है ये। what is the formula by which you can become very close friends with each other? What is the formula? Rupa Goswami is telling ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजते चैव षड्भिर् प्रीति षड्विधि प्रीति लक्षणम, षड्विधम प्रीति लक्षणम। तो ये 6 चीजें क्या है? प्रीति के लक्षण है। नॉट योर क्लासमेट प्रीति बट प्रीति लक्षणम।
अब मेरे को सारी कृष्ण की बात तो बाकी but anyway, so you know these are the 6 things which are very very good to develop very close intimate relationships with each other. तो ये हमने we had discussed last time. And then उसके पहले out of turn Krishna Prabhu had gone and he had discussed the shloka number 5. This shloka please repeat after me. Krishne tiyasya giritam manasadriyeta Krishne tiyasya giritam manasadriyeta Dikshasti cheta pranatibhishcha bhajantam isham Dikshasti cheta pranatibhishcha bhajantam isham Shushrusaya bhajana vigyamananya manya Nindari shunya hridam ipshita sangalabdya इन दिस श्लोका क्या हुआ था कि ठीक है एसोसिएशन करना है बताएं और ये हम आज नहीं कवर दिस नॉट अवर टुडेस टॉपिक दिस हैज बीन कवर्ड बाय कृष्ण प्रभु अर्लियर वेयर इन द थीम बट वी जस्ट क्विकली रिवाइज व्हाट वाज द थीम ऑफ दिस द थीम ऑफ दिस वाज कि अच्छा अब हमको एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज करना है पर हमको समझना है कि सारे डिवोटी एक जैसे नहीं होते ऑल डिवोटीज आर नॉट सिमिलर सम डिवोटीज आर सीनियर सम डिवोटीज आर जूनियर सम डिवोटीज आर इक्वल पता चला कोई जूनियर डिवोटी से हम भक्ति में प्रगति करने के लिए कुछ सीख लें और हमारा पतन हो जाए सो वी शुड नो तो यहाँ पे रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि भेदभाव करना चाहिए इन अ पॉजिटिव वे डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए बिकॉज अगर आपको भक्ति में प्रगति करनी है तो अपने से आप ऊपर वाले भक्तों को देखोगे कि अपने से आप नीचे वाले भक्तों को देखोगे टेल मी दैट्स व्हाट रूप गोस्वामी इज क्लैरिफाइंग हियर एंड देन पूरा पर्पोर्ट नहीं दिख रहा है क्या अच्छे से ठीक है वेरी क्विकली वी विल समराइज ये पूरे जो ये श्लोक है उसका फ्लो चार्ट है दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ दैट होल श्लोका कि यहाँ पे पर्पट में प्रभुपाद बता रहे हैं कि 3 प्रकार के भक्त होते हैं कनिष्ठ अधिकारी मध्यम अधिकारी है उत्तम अधिकारी तो कनिष्ठ अधिकारी के क्या लक्षण होते हैं पहली बात तो वो नया नया होता है भक्ति में और उसको लगता है कि ये जो अर्च विग्रह है और भगवान है यही सब कुछ है और वो भक्तों को इग्नोर करता है निग्लेक्ट करता है भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना है वो उसको समझ में नहीं आता है और दूसरा वो अभी चैंटिंग करना सीख रहा है धीरे धीरे एंड ही मे बी इनिशिएटेड आल्सो कनिष्ठ अधिकारी can be initiated also harinam initiated actually that's where spiritual life begins so one who is trying to chant the holy names that is कनिष्ठ अधिकारी और उसका जो श्रद्धा होती है कोमल होती है तो ये सब कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण होते हैं दूसरा हुआ मध्यम अधिकारी के लक्षण क्या होते हैं वो 4 काम करता है प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा प्रेम किससे करता है मध्यम अधिकारी भगवान से मैत्री किसके साथ करता है भक्तों के साथ कृपा किसको देता है जो उससे जूनियर डिवोटीज हैं सीनियर जूनियर क्या है वो हम आज के श्लोक में देखेंगे जो जूनियर डिवोटीज है उनके ऊपर कृपा करता है करुणा दिखाता है और उपेक्षा किससे दूर रहता है जो ईर्ष्या करते हैं जो भगवान से या भगवान के भक्तों से या इस्कॉन से जो ईर्ष्या करते हैं उनसे दूर रहता है अब समझ में आया मध्यम अधिकारी क्या करता है और मध्यम अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी से ऊपर होता है क्योंकि अब वो भगवान के डीटी वर्शिप में बहुत अच्छे से अटैच हो गया है भगवान की बहुत अच्छे से सेवा कर रहा है 24/7 और उसको भक्तों के साथ आदान प्रदान भी करना आता है किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए दैट इज मध्यम अधिकारी वन हु नोज हाउ टू डील विद कृष्णा एंड हिज डिवोटीज नाइस दैट इज मध्यम अधिकारी एंड सच अ डिवोटी प्रभुपाद सेज मिडिल क्लास डिवोटी कहने का मतलब मिडिल क्लास मतलब ऐसा नहीं जो हम बोलते हैं मिडिल क्लास आदमी ऐसा नहीं कहने का मतलब कि जूनियर मिडिल एंड सीनियर लाइक दैट मध्यम कनिष्ठ अधिकारी मध्यम तो ये क्या करता है 4 काम प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा विद कृष्णा ही loves friendship with devotees compassion or karuna to juniors whom he is trying to inspire in Krishna consciousness and upeksha tries to avoid whom those who are envious और उत्तम अधिकारी कौन होता है प्योर डिवोटी उत्तम अधिकारी इज प्योर डिवोटी जो आज हमने भजन गाया वो किसके लिए है उत्तम अधिकारी दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारा गुण है पाप तुम्हारा निकट गेले पाप दूर जाए उत्तम अधिकारी और उत्तम अधिकारी क्या होता है उसका एकदम स्ट्रॉन्ग फेथ है कृष्णा में और उसके अंदर बहुत तीव्र प्रेम है कृष्णा को लेकर और वो दूसरों को कभी क्रिटिसाइज नहीं करता है और सेल्फ रियलाइज है और निरंतर भगवान का नाम गुण रूप लीला का प्रचार करता है यू नो दैट इज उत्तम अधिकारी ओके सो ये एंड देन तो यहाँ पे ये जो साइकिल है ना इफ यू सी हियर तो हमें क्या करना होता है हम श्रद्धा से उत्तम अधिकारियों से सुनते हैं श्रवण करते हैं उनकी सेवा करते हैं उनका संग लेते हैं और आज के हम श्लोक में देखेंगे प्रभुपाद परपोर्ट से बता रहे हैं कि हु इज अ प्योर डिवोटी प्रभुपाद सेज कि वन हु इज ट्राइंग टू बिकम अ प्योर डिवोटी इज आल्सो अ प्योर डिवोटी so we don't have to wait for an उत्तम अधिकारी to come in between us before we can do hearing
anybody who's, and in some other lecture Prabhupada says कि anybody who's trying to sincerely follow the instructions of a pure devotee is a pure devotee. And we'll see in today's verse who are our seniors, from whom we should hear, we should serve and all. तो आज के श्लोक पे आ जाते हैं. That is our today's श्लोक, which is श्लोका नंबर 6. ये जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है उपदेशामृत, इसके जो पहले 7 श्लोक हैं, आपको पता है भक्ति के 9 स्तर कौन से होते हैं? 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति. अदौ श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनन्य निवृत्ति एंड ऑल दैट. सिमिलरली 3 प्रकार की भक्ति होती है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ भक्ति. वन इज कॉल्ड एज साधना भक्ति, द अदर इज कॉल्ड एज भाव भक्ति एंड द थर्ड इज कॉल्ड एज प्रेम भक्ति. करेक्ट? साधना भक्ति, भाव भक्ति एंड प्रेम भक्ति. साधना भक्ति मतलब क्या? उसमें हम सारे नियमों का पालन करते हैं, यम नियम सारे अच्छे से पालन करते हैं. भाव भक्ति मतलब क्या? हम एक तरह से उससे ऊपर हो गए, फिर भी वो व्यक्ति सारे नियम का पालन करता है अच्छा उदाहरण स्थापित करने के लिए, पर अब वो नियम के से बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि वो भाव के स्तर पर है. और प्रेम भक्ति उससे भी ऊपर हो गया, प्रेम भक्ति. तो ये जो पहले अच्छा, साधना भक्ति में भी 2 प्रकार है. एक होता है वैधि साधना भक्ति और एक होता है रागानुगा साधना भक्ति. अभी क्लियर हो गया सबको व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति. एंड साधना भक्ति आल्सो हैज 2 टाइप्स. सबसे पहले वैधि साधना भक्ति एंड देन उसके ऊपर रागानुगा साधना भक्ति. हम लोग किस स्तर पर हैं? वैधि साधना भक्ति. वैधि मतलब क्या? 16 माला जप, नियम का सारे नियम का पालन करना, छोटे छोटे नियमों का ध्यान रखना. और जब हम छोटे छोटे नियमों का ध्यान रखते हैं ना, जैसे हमने बताया इन द मॉर्निंग वी वर, आई मीन इन द बिगिनिंग वी डिस्कस, कि जब हम छोटे छोटे चीजों का ध्यान रखते हैं तो हम भक्ति में प्रगति करते हैं. और छोटे छोटे चीजों में आते हैं वैष्णव सदाचार भी. अब जैसे अगर हम किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, सी दीज मॉर्निंग क्लासेस इन जनरल आर नॉट फॉर ट्रेनिंग. These morning classes are for our nourishment in Krishna consciousness. So these are more like Bhagavatam classes. But इससे जो नए भक्त हैं उनके लिए ये काफी नहीं है. जो नए भक्त हैं they have to have more one-on-one personal interaction with their mentors. Please ये बात ध्यान से सुनिए. जो नए भक्त हैं जिनको भक्ति में अभी 2 साल 3 साल से कम हो, जो 16 माला तक नहीं पहुंचे हैं, let's say I am calling them as new devotees, या जिनको कुछ बातें अभी भक्ति की बहुत सारी नहीं पता है, उनके लिए बहुत जरूरी है कि दिस मॉर्निंग प्रोग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी. बट दोस हु आर न्यू इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, फॉर देम इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट दे आर अटेंडिंग वन मोर प्रोग्राम व्हिच इज मोर प्राइवेट, स्मॉलर ग्रुप ऑफ डिवोटीज, more close interaction, one-on-one interaction with mentors, wherein they are understanding some practical aspects of bhakti, like तुलसी महारानी की पूजा, जो कि हो चुका होना चाहिए आइडियली. जो गीता कोर्स होता है या जो भक्ति वृक्षा के मॉड्यूल्स होते हैं उसमें ये सब हो चुका होना चाहिए कि हम तुलसी महारानी की पूजा क्यों करते हैं, तुलसी महारानी कौन है, दंडवत कैसे करते हैं, जब भगवान के मंदिर में आते हैं तो क्या करते हैं, प्रसाद कैसे ग्रहण करते हैं, प्रसाद कैसे सेवा करते हैं प्रसाद की, ये सब हमें पता होना चाहिए. क्योंकि अगर हम धीरे धीरे टाइम स्पेंड करेंगे भक्ति में तो धीरे धीरे सीनियर बन जाएंगे. सीनियर विद इन डबल कोट्स, सीनियर बन जाएंगे. सीनियर होने के बाद भी अगर हमको इन बातों के बारे में ना पता हो तो इट बी शेम. कोई फिर आपको करेक्ट नहीं करेगा क्योंकि आप सीनियर बन गए. कोई किसी को लगेगा अरे आपको बुरा लग जाएगा. लेकिन जो जूनियर होंगे 2 इससे प्रॉब्लम होगी. एक तो आपकी प्रगति अच्छे से नहीं होगी क्योंकि आपको बहुत सारी बातें नहीं पता है, और दूसरा आप जिनको प्रेरणा दे रहे हो वो और भी ढीले हो जाएंगे. उसके बाद और भी ढीले, तब तो गया पूरा बैंड बज गया पूरे कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट का, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का. इसलिए जो भी भक्त लीडरशिप पोजीशंस में हैं, मेंटर्स, फैसिलिटेटर्स, प्रीचर्स, इट्स देयर फर्स्ट रिस्पांसिबिलिटी टू गेट ऑल ट्रेनिंग. जैसे मान लीजिए हम सेंटर में घुसते हैं, तो क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले घुसते ही पहले डोर पे ही दंडवत करते हैं. किसको? सारे वैष्णवों को. और वैष्णवों को दंडवत करते हैं तो क्या बोलते हैं? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु. अभी मैं केवल 2 मिनट, क्योंकि आई हैड ऑब्जर्व समथिंग, इसलिए मेरे अंदर ये फ्रेश है, इसलिए मैं 2 मिनट ले रहा हूँ. बट दिस मॉर्निंग क्लासेस आर नॉट मेनली फॉर दैट. इसलिए मैं बता रहा हूँ सबको कि एवरीबडी शुड हैव अ मेंटर and everybody should be attending some mentor programs once a week, once in 2 weeks, wherein these practical aspects should be discussed. And I am telling to all mentors also, and I am telling to all devotees also. Aspects like तिलक कैसे लगाते हैं, कहाँ तिलक लगाते हैं, तिलक लगाते समय क्या बोलते हैं, पंचांग प्रणाम क्या होता है, अष्टांग प्रणाम क्या होता है, माता जी इसको पंचांग करना होता है, प्रभु जी इसको अष्टांग करना होता है, कब अष्टांग करना चाहिए, कब पंचांग करना चाहिए. You see?
ऑल्टर जब बंद रहता है तो क्या करना चाहिए? जैसे वन ऑफ द एस्पेक्ट्स इज जब ऑल्टर क्लोज होता है तो भगवान को दंडवत नहीं करते, बिकॉज़ द आइडिया इज दैट ही इज बिजी विद समथिंग एंड ही इज टेकिंग रेस्ट और ही इज बिजी विद समथिंग। जब कोई वैष्णव, ऑफ कोर्स ये यूथ और बॉयज डिवोटीज के लिए ज्यादा ट्रू है कि जब नहा के बाहर आते हैं गमछा पहने रहते हैं, तो अगर कोई गमछा में है तो आप उसको दंडवत नहीं करते हो, यू नो। सो देयर आर मेनी प्रैक्टिकल। जब कोई प्रसाद ले रहा होता है तो हम उसको दंडवत नहीं करते। व्हाई? बिकॉज़ द मोमेंट यू डू दंडवत द अदर पर्सन हैज टू रेसिप्रोकेट। अब वो प्रसाद ले रहा है, आप उसको ऐसे डिस्टर्ब कर रहे हो, तो उस समय ऐसे करते हैं। यू सी सो मेनी थिंग्स। और जब हमको रिफाइंड होना होता है ना, रिफाइंड ऑयल नहीं, वो तो अच्छा नहीं, जब हमको रिफाइंड वैष्णव बनना होता है तो हमको ये छोटी छोटी बातें सीखनी है, जो हम जल्दी सीख लेंगे तो अच्छा है। बाद में क्या ऑकवर्ड लगता है कि बताओ इतने साल से 16 वाला जप कर रहे हैं, उसको ये बातें नहीं पता है, यू नो। तो हमारे खुद के लिए भी अच्छा नहीं होता और हम दूसरों को फिर कैसे प्रेरणा देंगे, करेक्ट? तो एनीवे, तो जब हम घुसते हैं अंदर तो अच्छा, पंचांग अष्टांग में कुछ लोग, कोई भी कैसे भी करता है, ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ टच होना चाहिए, क्योंकि जो पंचांग में 5 लिम्स हैं, 5 बॉडी के पार्ट, 3-4 बॉडी के पार्ट टच होते हैं और एक होता है वर्ड्स। जब भी हम दंडवत करते हैं तो बोलना चाहिए, जो भी जिसको दंडवत कर रहे हैं उसकी प्रणति। वैष्णवों को दंडवत कर रहे हैं तो वैष्णव प्रणति, गुरु को दंडवत कर रहे हैं तो गुरु प्रणति, प्रभुपाद को दंडवत कर रहे हैं तो प्रभुपाद प्रणति, ऑल्टर के सामने दंडवत कर रहे हैं। बिना बोले दंडवत कंप्लीट नहीं होता है, बिकॉज जो पंचांग में 5 अंग है और अष्टांग में 8 अंग है, उसमें घुटना सिर ये सब है, इंक्लूडिंग वर्ड्स, एंड अष्टांग में तो इंटेलिजेंस भी है। There is also 5 to 8 है ना। So these things can be discussed details in, there are all manuals and all these material is all available. All mentors should remember these things to pass on. तो जब हम anyway very quickly just to move on to the topic, जब हम घुसते हैं सेंटर में, तो सेंटर में घुसते ही पहले सारे वैष्णवों को दंडवत करते हैं वांछा द्रव्य से। उसके बाद जाते हैं प्रभुपाद के सामने, प्रभुपाद के सामने दंडवत करते हैं प्रभुपाद को, फिर आते हैं ऑल्टर के सामने। अब यहाँ मान लो ऑलरेडी सब डिवोटीज बैठे हैं तो ऑल्टर को भी वहीं से कर सकते हैं दंडवत, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। प्रैक्टिकल टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस आर डिफरेंट, बट mentally we should understand what we are doing, because we cannot approach Krishna without Prabhupada. That's the idea, right? तो ये चीजें हो गई। Similarly, जब हम आरती करते हैं या डांस करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हाथ क्यों खड़ा करना है? चैतन्य महाप्रभु हाथ खड़ा करने कंटिन्यूस खड़े हैं, किसके लिए? हमारे लिए। तो हमें हाथ खड़ा करने में संकोच नहीं करना। डांस करने में, हाँ, किसी को अगर शरीर में कोई तकलीफ है, दिक्कत है, तो बात अलग है, इट्स नॉट अ फोर्स। लेकिन अगर हम एकदम बढ़िया है, नो प्रॉब्लम, देन वी शुड एंथुसियास्टिकली डांस, क्योंकि उससे क्या होता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए डांस करेंगे, इससे हमारी भक्ति में प्रगति होती है, भगवान कृपा देते हैं। सी, भक्ति इज नॉट अ पाथ ऑफ ज्ञान एंड कर्म, भक्ति इज अ पाथ ऑफ ग्रेस, भक्ति इज अ पाथ ऑफ प्लीजिंग हरि गुरु वैष्णव। किसको प्लीज करना है? देखिए, भक्ति में बड़े सारे नंबर गेम है। नंबर गेम मतलब नॉट इन नेगेटिव सेंस, बट फॉर्मूला वगैरह, जैसे अभी हमने देखा रूप गोस्वामी 6-6-6 लूडो खेलते हैं ना, तो क्या चाहिए आपको? 6 चाहिए, तो 6 हमने क्या लिखते सारे 6-6-6। फिर ABCD बहुत सारे हैं, बहुत बार हमने डिस्कस किया है। सिमिलरली बहुत सारे नंबर्स हैं, मैं भी नंबर में क्यों चला गया, नहीं, उस 6 के पहले हरि गुरु है, हाँ। सो 3, ये 3 नंबर का, यू नो, 3 की बहुत सारी चीजें हैं भक्ति में। एक हो गया हरि गुरु वैष्णव। थैंक यू प्रभु फॉर वेरी अटेंटिवली लिसनिंग। हरि गुरु वैष्णव, हम किसको प्रसन्न करना, हम क्या करना चाह रहे जीवन में? व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू इन लाइफ? वी आर ट्राइंग टू प्लीज हरि गुरु एंड वैष्णवर्स। हरि मतलब भगवान, गुरु अगर हमारी दीक्षा हो गई है तो हमारे दीक्षा स्पिरिचुअल मास्टर, और प्रभुपाद तो है ही, वो तो हम सबके गुरु हैं। तो गुरु एंड वैष्णव, सारे भक्तों को, क्योंकि एक भी हुआ तो अधूरा हो जाएगा। वी हैव टू रिमेंबर वी आर प्लीजिंग, ट्राइंग टू प्लीज हरि गुरु वैष्णव। सिमिलरली एक और ट्राइपॉड है, ये क्या है? ये कैमरा के, मोबाइल किस पे रखा हुआ है? ट्राइपॉड क्यों बोलते हैं इसको? 3 पैर हैं इसके। सिमिलरली हमारी साधना भक्ति के 3 पैर हैं, पता है आपको क्या है? हरि नाम, जीव दया, वैष्णव सेवा। क्या 3 पैर है भक्ति के? इसमें से एक भी गया, हटा के देखिए क्या होता है मोबाइल का, कोई एक भी नहीं रहेगा। तो आपको पता है साइंटिस्ट दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू मेक अ रोबोट व्हिच कैन वॉक ऑन 2 legs। इट्स नॉट अ इजी थिंग। ये जो भगवान ने किया है हमारे शरीर में, इट्स नॉट अ जोक। जब हम रोबोट बनाने की कोशिश करेंगे जो 2 पैर पे चलेगा, तब समझ में आएगा कि भगवान ने क्या किया हुआ है, तब सैल्यूट करेंगे भगवान को। इसलिए जो जेन्युइन साइंटिस्ट होते हैं, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो जेन्युइन डॉक्टर्स होते हैं, वो जैसे ही शरीर काटेगा और देखेगा, अरे बाप रे, अंदर ये सब है, सैल्यूट। किसको? भगवान को। और जिनको थोड़ा मोड़ा ज्ञान है, अरे प्रभु जी, विज्ञान इतना प्रगति कर गया है, और आप यहाँ पर भजन कीर्तन करते हैं। ये कौन बोलता है?
थोड़ा मोड़ा ज्ञान है जिसको ज्यादा कुछ पता नहीं साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में। एनीवे, तो एक पैर, तीनों पैर चाहिए। तो भक्ति के 3 पैर क्या है? हरि नाम, मतलब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जीवन में कभी डेली अपने आप से एक क्वेश्चन करना है। मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज हमें क्या बनना है? कौन सा भक्त बनना है? ठहरा हुआ स्थिर भक्त बनना है कि प्रगतिशील एंड प्रोग्रेसिव डिवोटी बनना है? ये सबको फॉर्मूला बना लीजिए लाइफ में, अदरवाइज टाइम वेस्ट कर रहे हो। उससे अच्छा मूवी देखते हैं, और कौन कब मर जाएगा मालूम नहीं। इज नॉट अ जोक, इज नॉट अ जोक, एंड दैट बी टू लेट, दैट बी टू लेट। सो और ये जो ह्यूमन लाइफ मिला है इसको हमें छोड़ना नहीं है। और ये जो भक्तों का संग, इस्कॉन, प्रभुपाद, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, ये एक अलग सेमिनार है कि हमारा अहोभाग्य, उसका कोई सीमा नहीं है हमारे भाग्य की। वो भी कलयुग में ऐसा समय जब आप नल खोलो तो पानी आता है, नहीं तो आपको जाना पड़ता दूर 10 किलोमीटर पानी के लिए, तब कर पाते भक्ति अच्छे से। तो एवरीथिंग इज परफेक्ट राइट नाउ। ये जो 10,000 साल है ना कलयुग का, दैट इज लाइक कॉल्ड एज गोल्डन एज इन द आयरन एज। कलयुग को आयरन एज बोलते हैं, लोहा युग बोलते हैं कलयुग को, पर ये जो 10,000 साल है ये गोल्डन एज है आयरन एज के अंदर भी। वैसे सत्युग को गोल्डन एज बोलते हैं। ये सब हमें समझना है, नॉट जस्ट कि हाँ सुन लिए, बोल दिए, दूसरे को बता दिए, यस यस, नो। अंदर कुछ चाहिए। रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद स्मरण इन चीजों का। दैट इज द पर्पस ऑफ रीडिंग हियरिंग। हम रीडिंग हियरिंग केवल ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं। रिमेंबर लास्ट टाइम ऋषि वाज टेलिंग कि ज्ञान और कर्म से परे है भक्ति। हम जब लेक्चर सुन रहे हैं केवल ज्ञान बढ़ाने नहीं कर रहे हैं। यस, साधना भक्ति के स्तर पर ज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पर अल्टीमेटली भक्ति इज बियॉन्ड ज्ञान। हम जब श्लोक याद कर रहे हैं, हाँ उससे ज्ञान बढ़ रहा है, पर और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे चेतना में आए, हमारे स्मरण में आए। नहाते जैसे ठंडा पानी गिरे एक श्लोक निकल जाए, यू सी लाइक दैट। सो ऐसे भक्ति करनी चाहिए हमको। तो हरि नाम, तो हम वी शुड आस्क आवरसेल्व्स डेली, मेरा भक्ति का ट्राइपॉड की 3 चीजें ठीक चल रही है क्या? अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए। हरि नाम चैंटिंग कर रहा हूँ क्या? ठीक है, कभी कभार इमरजेंसी हो जाती है, कभी कभार ऑफिस में प्रेशर ज्यादा हो जाता है, वो सब चलता है। भगवान बहुत दयालु, पता है कितने दयालु है? कितने? बहुत दयालु है। और क्या भगवान के सामने कोई दिखावा तो कर नहीं सकते वैसे भी, अरे भगवान जी आपको पता नहीं है मैं आज नहीं चैंटिंग कर पाया, लेकिन एक्चुअली मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। कोई मतलब इस बात का कोई वैल्यू ही नहीं है। हम अगर जैसे एक छोटा बच्चा लड़खड़ा के चलने की कोशिश करता है तो सब बड़े लोग और पेरेंट्स ताली बजाते हैं, इंकरेज करते हैं। भगवान के लिए हम वैसे हैं, भगवान के लिए वैसे, चाहे दीक्षा हो गई हो, 10 साल 20 साल हो गया हो, वही है। पहले के लोग तो हजार साल 50 हजार साल तपस्या करते थे, उसके बाद भी मेनका छन करती थी, पतन हो जाता। तो हम ये ना समझे कि हम बहुत महान हैं। You see what I'm trying to say? So these things we have to always remember. So we should ask ourselves, if not daily, every week, if not every month, कि मेरा हरि नाम ठीक चल रहा है क्या? नहीं यार, मेरा रूटीन में गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है, मैंने तो चैंटिंग अपना गाड़ी चलाते चलाते फिट कर लिया है, तो ऐसे ही मरना है क्या मेरे को? You see what I'm trying to say? तो क्या करें इसमें? ओके, रूटीन ऐसे चेंज करते हैं, ऐसे करते हैं, दैट इज अ प्रोग्रेसिव डिवोटी। तो हरि नाम। दूसरा वैष्णव सेवा। मैं किसी की सेवा कर रहा हूँ? अरे नहीं, मैं तो खुद खा पी के मजा कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ? नहीं, सेवा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए वैष्णव की। ठीक है, कुछ करते हैं, नो वी शुड आस्क आवरसेल्व्स। और तीसरा जीव दया। किसी न किसी माध्यम से या तरीके से मैं दूसरों को प्रेरणा दे रहा हूँ क्या? भक्ति में लाने के लिए जोड़ रहा हूँ क्या? जीव दया, द टॉप मोस्ट चैरिटी और दया टू एनीबॉडी इज व्हाट? टू ब्रिंग समबडी टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसका मतलब ये नहीं कि हम लेक्चर दे बैठ के सबको, हर कोई बैठ के व्यास में बैठ के लेक्चर नहीं देगा ना, हर कोई, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट sitting on Vyasasana and giving class is also Jeev Daya. Washing vessels to help in a program is also Jeev Daya. Distributing books is also Jeev Daya. I am sitting in my home and some guests have come and I am just telling them something about Krishna, asking them to take darshan of Krishna is Jeev Daya. We should not be संकुचित mentality. हमारे सेंटर में आज बहुत सारे नए चेहरे देख रहा हूँ मैं, उनके साथ, और जो भक्त पहले से आ रहे हैं, जो भक्त रेगुलरली आते हैं, वो उनके पास जाएं, उनसे बात करें, उनको बताएं कुछ, और अगर वो जुड़े हुए हैं इस्कॉन में से तो उनको बोलेंगे तो आप डेली आइए, बहुत बढ़िया है, आप भी सेवा करिए। और पहली बार आ रहे हैं भक्ति में तो फिर उनको उनका मार्गदर्शन करें कि अच्छा आप कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं। नॉट दैट हम आए अपना काम करके चले गए, नो, यू हैव टू आस्क आवरसेल्फ। ये भक्ति के, दीस आर द एस्पेक्ट्स ऑफ भक्ति, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स विदाउट व्हिच अवर भक्ति इज इनकम्प्लीट। तो क्या क्या 3 डिस्कस किया? हरि गुरु वैष्णव एंड हरि नाम, वैष्णव सेवा एंड जीव दया। एनीवे,
So हाँ, so now let's come to, but why did we talk about this? हाँ, तो वो तीन भी वही है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, we should know. हाँ, so I was talking about सदाचार. हाँ, तो भक्ति में ना attention to details is very important. Attention to details. अब जैसे कोई सोच सकते हैं कि अच्छा सुबह आरती हो रही थी, हम डांस कर रहे थे, तो हमारा भाव भगवान की भक्ति में होना चाहिए कि डांस के स्टेप्स कैसे होना चाहिए उसमें होना चाहिए? What do you feel? भगवान की भक्ति में होना चाहिए. लेकिन अवर इज अ प्रीचिंग मूवमेंट. जब 50 लोग इकट्ठा आके डांस कर रहे हैं, एक का हाथ इधर जा रहा है, एक का हाथ इधर जा रहा है, एक का पैर ऐसे जा रहा है, एक आगे जा रहा है, एक पीछे जा रहा है, भगवान को कैसा लगेगा देखने में? चलिए, तो इसलिए ये सब का भी रोल है, ये सब का भी रोल है. अगेन एज आई सेड, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? डिवोशन. इसीलिए जब शुरू में ही हम नए आ रहे होते हैं तो ये सब चीज सीख लेनी चाहिए, जिससे कि फिर यहाँ पे ध्यान न रहे तो ऑटोमेटिक ही हो रहा हो. राइट? सो प्रभुपाद खुद अपने डिसाइपल्स को सिखाते थे स्वामी स्टेप. स्वामी स्टेप पता है आपको? जैसे हम करते हैं आरती में करताल, करताल कैसे बजता है? तो ये जो तीसरा वाला होता है ना, 1 2 3 तीसरा, उसमें ऐसे एक पैर इधर, फिर इधर, फिर इधर, यू नो, जैसे यू अंडरस्टैंड ऐसा. तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसा. और जिनको म्यूजिक का सेंस होता है उनके अंदर नेचुरल होता है, सबके अंदर अपने आप हो रहा होता है. किसी किसी को म्यूजिक का सेंस नहीं होता है तो थोड़ा आउट ऑफ सिंक चला जाता है, तो थोड़ा फिर ऐसे वक्तों को थोड़ा पीछे खड़ा होना चाहिए. सी दीस आर ऑल पार्ट्स ऑफ ट्रेनिंग. क्यों? क्योंकि मान लो जो नया आएगा वो पूरा कंफ्यूज हो जाएगा क्या करना है. तो इसीलिए जितने भी एग्जिस्टिंग डिवोटीज होते हैं, जिनको ये सब बातें पता होती है, जो उनको हमेशा रो में आगे की तरफ खड़ा होना चाहिए, सो दैट एवरीबॉडी एल्स कैन फॉलो द सेम स्टेप्स. सोचो जो आगे खड़ा है उसके स्टेप्स ब्रेक कर रहे हैं तो पूरा वो एक तरह से क्योस हो जाता है. नाउ अगेन, इज भक्ति मोर इंपॉर्टेंट और दिस इज मोर इंपॉर्टेंट? भक्ति. बट these are some simple things just to understand in 1 minute. और वो कर लेते हैं तो हम और ट्रेंड और रिफाइंड वैष्णव बनते हैं. कल को हम नया सेंटर खोल सकते हैं. हमको अगर ये सब बातें पता नहीं होंगी, अगर अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन पता नहीं होगा, तो हम लीडर नहीं बन पाएंगे ना. That's the problem. And our movement is preaching movement. We have to inspire and encourage. प्रभुपाद बोलते थे कि हम तो क्या एक पेड़ के नीचे भी मंदिर खोल दें, और हम बड़ा भव्य मंदिर क्यों बनाते हैं और सब कुछ नीट एंड क्लीन स्पीक एंड स्पैन क्यों होना चाहिए? So that as soon as somebody comes, they should get attracted. Krishna. क्योंकि spiritual world में ऐसा ही होता है. So Prabhupada has given all these understandings very nice. यहाँ पे कोई किसी ने नया कुछ नहीं बनाया है. Prabhupada has said all these things. और उसके वजह से ISKCON में जो एक power है ना वो है. Of course, it does not mean that we disrespect every other society or organizations. But the point is that we have to try to make things more and more attractive. And उसके लिए each one of us have to become more refined and more trained, not only in externals but more important internals. How we deal with people, how we deal with each other. और ये सब भी यहाँ पे रूप गोस्वामी ने लिखा है पहले 7 श्लोकों में, which is a part of sadhana bhakti, Vaidhi bhakti. Are you understanding the importance of these things? Similarly, जब तुलसी वर्शिप हो रही है, राइट, तो जो पुजारी होता है वो एक्चुअली प्रभुपाद को उसको देखना होता है, इसलिए वो एरिया खाली रहता है तो ठीक रहता है तुलसी के पीछे वाला. सिमिलरली मान लो कोई आ रहा है और कार्टन उधर से इधर लेके जा रहा है, तो तुरंत किसी एक को खड़ा होकर उसको हेल्प करना चाहिए और कुछ है क्या. These are all natural, even human behavior. You see, so then when we become a refined devotee, Vaishnava सदाचार, ये एक important topic होता है, because we don't want to be only philosophically a Vaishnava. Please note this point. हम वैष्णव बनना चाहते हैं हम सब, करेक्ट, पर हम केवल फिलोसॉफिकल वैष्णव नहीं बनना चाहते, हम कल्चरल वैष्णव बनना चाहते हैं. वी डोंट वांट टू बी ओनली फिलोसॉफिकली अ वैष्णव, वी वांट टू बी कल्चरली अ वैष्णव. कल्चरली मतलब क्या? बड़ों से कैसे बात करते हैं, बराबर वालों से कैसे बात करते हैं, छोटों से कैसे बात करते हैं. कोई अगर कुछ भारी सामान उठा के ले आ रहा है तो तुरंत उसकी जाके उठ के हेल्प करना, यू नो, दिस इज कल्चरली अ वैष्णव, राइट. एंड दैट वुड ऑलरेडी बी अ परफेक्ट जेंटलमैन और जेंटल लेडी, क्योंकि उसमें ये सब इंक्लूडेड है. अब देखो कहीं नॉर्मल में ये सब बताएंगे ना, माँ बाप अपने बच्चों को ये सब बताते हैं ना, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में ये सब इंक्लूडेड है. ऐसा नहीं कि छोड़ के हमको भक्ति करनी, ये सब इंक्लूडेड है उसमें. पर हाँ, अब हम ये कर रहे हैं भगवान को केंद्र मानकर, हर एक को भगवान का अंश मानकर, तो उससे और चेंज हो गया, 0 का 1 ऐड हो गया. यू सी, इट्स अ मैजिक. सेम चीज है, अर्जुन इज आल्सो फाइटिंग, दुर्योधन इज आल्सो फाइटिंग, पर अर्जुन इज मेकिंग प्रोग्रेस, दुर्योधन इज गोइंग डाउन. दोनों फाइटिंग कर रहे हैं, सेम चीज है. सो जब हम इस तरह से कुछ करते हैं ना, तो अपने को एक मोटिवेशन भी होता है, यस मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है ये करके, और ये वैल्यूलेस नहीं है. जैसे बिफोर कमिंग टू ISKCON मेरे को कोई बोलता था सच बोलो, झूठ मत बोलो. कोई अगर थोड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा बोलेगा क्यों झूठ नहीं बोलो, पहले ये बताओ. झूठ बोल के तो पूरी दुनिया चल रही है, तो क्यों झूठ नहीं? अब कोई आंसर ही नहीं है. तो अभी मतलब ठीक है, हाफ हार्टेड कर रहे हैं, ठीक है, बड़ों ने बोला है, इतने संस्कार थे कि बड़ों ने बोला है तो कर रहे थे, अभी तो भूल जाइए. बड़ों ने बोला मतलब व्हाट डू यू मीन. पेरेंट टीचर मीटिंग में गया था स्कूल में,
हम जब स्कूल में जाते थे तो टीचर सामने खड़ा होता तो एकदम मतलब जैसे आपने सोल्जर में देखा आर्मी लोग में कोई सीनियर खड़ा होता तुरंत ऐसे जय हिंद सर ऐसा। तो हम लोग स्कूल जाते थे, गलत बोल रहा हूँ, कोई अगर टीचर होता था तो हमारा क्या एटीट्यूड होता था टीचर के प्रति? तुरंत एकदम गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, व्हाटएवर जो भी बोलते थे और एकदम मतलब थोड़ा। आजकल क्या है, कॉर्पोरेट टाइप इन्वायरमेंट है, वो हमारे पैसों पे ही पढ़ रहे हैं बच्चे, ऐसा सोचते हैं। टीचर नहीं रहा हा? और कल्चर भी कल्चर नहीं रहा, तो वही सर खोल के करके बात कर रहा है क्योंकि उसको पता है। यू सी हाउ, जैसे एक बार वी वर डिस्कसिंग राइट, किसी भी समाज का नाश करना है, सिविलाइजेशन का नाश करना है तो 3 चीजों को अटैक करो, टीचर को, मदर को और लीडर्स को। मतलब टीचर ना रहे और लोगों को टीचर के प्रति रेस्पेक्ट ना रहे, मदर वाला काम ना करे और लोगों को मदर के प्रति रेस्पेक्ट ना रहे, घर कौन बनाएगा, संभालेगा कौन, बच्चों को शिक्षा कौन देगा? शिवाजी को शिवाजी कौन बनाएगा, महाराणा प्रताप को महाराणा प्रताप कौन बनाएगा? सब जगह पैसा कमा रहे हैं, क्या करेंगे पैसे का? खाएंगे, थोड़ा चाहिए। भागवतम सेज वेल्थ इज लाइक सॉल्ट, ज्यादा हो गया खाने में तो प्रॉब्लम, कम हो गया तो प्रॉब्लम। अब वो बैलेंस, कोई बोलेगा प्रभु जी मेरे पे तो ये बैलेंस है, कोई बोलेगा मेरे ये बैलेंस, दैट्स वेयर गाइडेंस इज नीडेड, दैट्स वेयर आवर ओन सिंसियरिटी एंड दैट्स वेयर कृष्णा इज देयर इन आवर हार्ट, ददामि बुद्धि योगम तम, कृष्णा सेज, कृष्णा गिव्स इंटेलिजेंस इफ वी आर सिंसियर, वी कम टू नो एंड देयर आर सम चेक्स टू चेक कि ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। सिंपल चेक्स है, अगर ये हो रहा है मतलब ज्यादा हो रहा है, ये हो रहा है मतलब कम हो रहा है। सीनियर डिवोटीज, मेंटर्स, काउंसलर्स विल एडवाइज अस, राइट? एनीवे, तो हाँ, तो टीचर्स को अटैक कर देंगे, मदर्स को अटैक कर देंगे और लीडर्स को। नो रोल मॉडल्स टू लुक अप टू। हिस्ट्री को भी पूरा बदल दिया, अभी धीरे धीरे रिवाइव हो रहा है। अब लोगों को पता चल रहा है शिवाजी कोई तो थे, महाराणा प्रताप कोई तो थे, नहीं तो हम तो अब वही सोचते थे अल्लाह अकबर सब कुछ। वो भी महान होंगे अपने अपने तरीके से, पर हमको पता होना चाहिए हमारी संस्कृति क्या है। रोल मॉडल्स थे भाई, ऐसा नहीं कि और कोई रोल मॉडल था ही नहीं, बाकी सब बाहरी वाले रोल मॉडल थे। हिस्ट्री में मुगल पीरियड ही ज्यादा पढ़ा रहे। तो ये सब दीज आर ऑल जो ऊपर के लोग होते हैं ना, दे आर डूइंग मेनी थिंग्स एंड दैट्स वेयर गुड गवर्नमेंट एंड गुड सिटीजनशिप ऑल आर इंपॉर्टेंट। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि एक एक घर भी एक एक गवर्नमेंट है ना, एवरी होम इज ऑल्सो गवर्नमेंट, राइट? एनीवे, so we should try to practice। और ऐसे करके जब हम सब साथ में आके जब ये बातें सुनते हैं, समझते हैं, धीरे धीरे हर व्यक्ति अपने अपने घर में, अपने अपने लाइफ में जब चीजों को इंप्लीमेंट करता है, धीरे धीरे वैकुंठ का निर्माण होता है। Like that. Okay, so let's recite today's verse. दृष्टे स्वभावाजनितैर् पुष्टश्च दोषैर् न प्राकृतत्वम् इह भक्तजनस्य पश्येत् गंगाम भासाम न खलु बुद्बुदफेन पंकैः ब्रह्म द्रवत्वम् अपगच्छति नीरधर्मे। ये उतना इजी नहीं है समझने को श्लोक, बट बड़ा सिंपल है। दृष्टै स्वभाव जनितैर् वपुषश्च दोषैर्। अगर कोई बहुत आपको अपने से वरिष्ठ भक्त दिखता है तो वापु मतलब उसका फिजिकल प्रेजेंस। हमको पता है ना 2 प्रकार का संग होता है भक्तों का। कौन सा 2 प्रकार का संग होता है भक्तों का? वापु एंड वाणी। वापु मतलब फिजिकल फॉर्म, वाणी मतलब सुनना। तो अभी हम प्रभुपाद का संग कैसे कर सकते हैं, वापु से कि वाणी से? वापु और वाणी में ज्यादा जरूरी क्या है? वाणी। वापु आज है कल नहीं रहेगा। कोई भी स्पिरिचुअल मास्टर हो, लिख के देता हूँ, कोई भी स्पिरिचुअल मास्टर हो, आज वापु है कल नहीं रहेगा, करेक्ट? तो स्पिरिचुअल मास्टर्स क्या बोलते हैं? वाणी। वाणी पे फोकस करिए, बॉडी पे नहीं। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है? दृष्टै स्वभाव जनितैर् वापुषश्च दोषैर्। तो कभी कभी क्या होता है, जो हमसे वरिष्ठ भक्त होते हैं, और यहाँ केवल शुद्ध भक्त की बात नहीं हो रही है, हमसे वरिष्ठ, और वो हम आज देखेंगे क्या है। डोंट वरी, ये अगला 10-15 मिनट में हो जाएगा। इस श्लोक में बहुत ज्यादा नई चीजें नहीं है, वी विल डिस्कस दैट क्विकली। तो जब भी किसी डिवोटी का जो हमसे वरिष्ठ है, उसका जो हम फिजिकल फॉर्म देखते हैं, उसमें कुछ दोष हो सकते हैं। दृष्टै स्वभाव जनितैर् वपुषश्च दोषैर्। पर वो दोष हमें नहीं देखने। दोष कैसे हो सकते हैं? हो सकता है बदसूरत हो। अरे तो शुद्ध भक्त के बाद तुम क्या सुंदरता देखने जा रहे थे? नहीं। हो सकता है एक पैर नहीं हो सकता है आवाज ठीक नहीं हो सकता है गाना नहीं गाना आता उसको, और ऐसे हो। सी दीज आर ऑल मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडी, ब्रेन। अब जैसे चेतन चंद प्रभु है, तो ही सुपर एनालिटिकल। आपको पता है ना, ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। एक एनालिटिकल साइड होता है, एक म्यूजिक वाला साइड होता है। किसी का म्यूजिक वाला साइड होता ही नहीं, किसी से कम होता है, किसी का होता ही नहीं। तो वो लोग फिर
मृदंग करताल टच नहीं करते हैं, पर दे आर सुपर इंडिकेटर, किसी का बैलेंस। अब अगर किसी के बच्चे हैं तो आप ऐसा मेक श्योर करिए कि उनको सब ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। सी जब हम बड़े हो जाते हैं तब कुछ चीजें रियलाइज होती है, पर अब आप अपने ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते, पर पास ऑन तो कर सकते हो ना। ब्रेन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, एंड पेरेंटिंग इंक्लूड्स मेकिंग श्योर दैट ऑल दोस एस्पेक्ट्स आर बीइंग डेवलप्ड, व्हिच इंक्लूड्स प्लेइंग लूडो, व्हिच इंक्लूड्स प्लेइंग चेस तो भी फ्रेश न्यूज़ है, राइट? व्हिच इंक्लूड्स गार्डनिंग। कल ही मैं स्कूल की पेरेंट टीचर मीटिंग में गया, तो दिस टीचर टोल्ड, अरे आप अपने बच्चे के साथ कितना अच्छे से कर रहे हैं, नो अच्छा बात कर रहे हैं, ये है वो है, आप थोड़ा, तो उन्होंने मेरे को साइड में लेके रिवर्स पेरेंट टीचर मीटिंग हो गया, मतलब टीचर पेरेंट मीटिंग हो गया। टीचर मेरी 9th में पढ़ती बेटी पढ़ती है, आप प्लीज कुछ सजेशंस दीजिए, लाइक दैट शी सेड, you know, and then so several things I was saying, one of the things I was saying is कि आप उनके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करते हैं क्या? हाँ, ये चीज़ नहीं करते। मैं बोला तो फिर, अच्छा मैंने बोला गार्डनिंग सिखाया है क्या, एम्ब्रॉयडरी सिखाया है क्या, निटिंग सिखाया है क्या? See, I am distracting, but I am taking all of your permission and liberty to just getting distracted because it's important to discuss. कि एक बार पुणे में some 10 years back we attended one parenting seminar. In that parenting seminar उन्होंने हम सब के हाथ में एक वो सिलाई करने वाला, स्वेटर बुनने वाला होता ना, वो पकड़ा जाए। मैं बोला वो ये क्या है? And my conception till that time कि हाँ ठीक है, जो गर्ल्स होती है, और अब तो खैर गर्ल्स भी नहीं करते, अब तो दादी नानी का ही काम है स्वेटर बनाना। उसके बाद तो वो जैसे ही वो डोर से बाहर निकले का मतलब समझ गए ना, जैसे वो गए तब तो इस दुनिया में स्वेटर बनाने का ज्ञान ही लुप्त हो जाए, क्योंकि वो रेडीमेड का जमाना है सब कुछ। तो मैं सोचता था, तो हम भी यही बार सोचते ना कि ठीक है छोड़ो, अगर रेडीमेड मिल ही रहा है तो क्यों बनाना आता है। दिस इज वेयर वी मेक अ मिस्टेक। जब कोई स्वेटर बनाता है, चाहे लड़का चाहे लड़की, उसमें जो पेशेंस लगता है ना, उसमें जो फोकस इन वन थिंग एंड वेटिंग, ऐसा नहीं अभी बनाना शुरू किया अभी बन गया, वो जो पेशेंस लगता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी चाइल्ड टू लर्न सो दैट ही ग्रोज अप टू बिकम अ पेशेंट पर्सन। गार्डनिंग में जो पेशेंस लगता है, आप बीज डाला आपको फल मिल जाएगा क्या? अरे रुको 1 महीना 2 महीना, पता नहीं जो भी टाइम होता है, गार्डनिंग के एक्सपर्ट्स बता सकते हैं। जो बचपन से ही गार्डनिंग कर रहे होते हैं उनके अंदर थोड़ा पेशेंस होता है। दे डील विद पीपल विद लव एंड रिस्पेक्ट। जो केवल ऑब्जेक्ट्स के बीच में पले बड़े कहते हैं, आप बताओ कौन सा कोड लिखना है, they will either commit suicide because they don't know how to deal with people. When life changes, when life throws different things at you, then you don't know how to deal with it, and that's what is happening in today's society. Gardening, embroidery, knitting, everybody should be trained in that. Cooking also, and therefore if you see typically females are more patient, more tolerant. They are having the ability, in general I am saying, exceptions can be there both sides, they have the ability to deal with chaos. सोचो सुबह का माहौल है, हस्बैंड इधर से चिल्ला रहा है, बच्चे उधर से चिल्ला रहे हैं, एक का जूता नहीं मिल रहा है, एक का टाई नहीं मिल रही है, एक का शर्ट नहीं मिल रहा है, एक का खाना नहीं बन रहा है, अभी खाना हो रहा है। एक फीमेल फिर भी ये सब हैंडल कर लेगी। नाउ इमेजिन अ मेल इन दैट सिचुएशन, ऊपर से छोटा बच्चा रो रहा है, मेल लेके मारे हो रहा है, चुप रहे, देख रहा है क्या चल रहा है। नाउ दीस आर फैक्ट्स। अब वो बात अलग है कि मेल नहीं रहा, फीमेल नहीं रही, you know, and then everything is खिचड़ी, क्योंकि वो सुपीरियर इंफीरियर हो गया, you know, मेल्स ने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, then it is going other way around, but facts are facts, and it's not just about female and male. As I said, if you go to some nice gurukuls, if you go to some people who understand parenting, चाहे राम भी गुरुकुल गए, चाहे संदीप कृष्णा गुरुकुल गए, संदीप मुनि गए, they all would learn all these different things, different kalas, because all of them have a role in our upbringing and our development. Anyway, so दृष्टि सभा, हाँ, तो मैं बोला कि तो जो हमसे जो वरिष्ठ भक्त हैं, हो सकता है उनका चेहरा अच्छा ना हो, उनका हाथ पैर अच्छा ना हो, उनका चलने का तरीका अच्छा ना हो, यू नो, या उनको गाना ना आता हो, ये सब क्या है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके दोषों को मत देखिए, पहली लाइन। दूसरा, ना प्रकृतत्वम इह भक्त जनस्य पश्ये, तो ये नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि ये देखिए कि उनका क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या देखना है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। उनके अंदर जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो देखिए, उनका सेवा के प्रति या अपने गुरु के प्रति जो समर्पण है वो देखिए। दैट इज व्हाट इज टू बी पश्येत, भक्त जनस्य पश्येत। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हमारे शास्त्रास आर सो वंडरफुल। हमारे आचार्य भी एग्जाम्पल्स देके बात करते हैं, स्टोरीज देके बात करते हैं, क्योंकि जब एग्जाम्पल्स होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, स्टोरीज होते हैं, तो चीजें स्मरण में रखना इजी हो जाता है। क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? जैसे गंगा में कभी कभी आप देखो तो दूषित सी लगती है ऊपर से देखने पर, उसमें बुलबुला आता है, बुदबुदा, फेन, झाग भी आ सकता है, तो लगेगा आपको दूषित है। पर गंगा ब्रह्म द्रवत्वम, वो जो है लिक्विड ट्रांसेंडेंस है। क्या है गंगा जी?
ब्रह्म द्रव्य है। गंगा जी एक साधारण पानी नहीं है, ब्रह्म द्रव्य है, मतलब लिक्विड ट्रांसेंडेंस। प्रभुपाद ट्रांसलेट से ब्रह्म द्रव्य को प्रभुपाद लिखते हैं लिक्विड ट्रांसेंडेंस। तो गंगा जी क्या लिक्विड ट्रांसेंडेंस, इसलिए वो समझकर आप समझते हो कि नहीं वो दूषित नहीं है और फिर भी आप स्नान करते हो पवित्र होने के लिए। तो जस्ट लाइक गंगा में भले ही आपको बुलबुला दिखे, झाग दिखे, फेन दिखे, फिर भी आपको समझना है गंगा तो हमेशा पवित्र है। ठीक उसी प्रकार एक जो हमसे वरिष्ठ भक्त हैं उनके अंदर कुछ डिफॉर्मिटीज दिखे, सोचो एक वरिष्ठ भक्त है वो ऐसे करता है, मान लो कर रहा है। अब वो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग therefore as we become senior the more we get trained in things the better. See, it's always both ways. Try to understand. Now this point is also very important, very important. A friend in need is a friend indeed, correct? तो इसका मतलब क्या, मैं मान लो हर्षित प्रो इज माय, मान लो नहीं he is my friend, so हर्षित प्रो is my friend, right? Now I'll say every time I'll come to him with some problem. अरे प्रभु जरा 1000 रुपीस लोन दो, अरे प्रभु जरा 5 लाख रुपया लोन दो, अरे प्रभु आपके पास एक गाड़ी है क्या, मैं ले सकता हूँ क्या, थोड़ा स्टेशन जाना है पेरेंट्स को छोड़ना, अरे प्रभु ना, और वो हल्का सा हेजिटेशन दिखा, अरे प्रभु जी फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड, ब्रो व्हाट आर यू सेइंग? ये सही है कि गलत है? गलत है। A friend in need is a friend in need is not to be applied on others to exploit them. It is to be applied on yourself. So yes, a friend in need is a friend indeed, but that does not mean you will go and exploit friends on this basis. Similarly, I was discussing with one of the devotees in some days back. Let's say a grahastha, there is a rule in the shastras that the grahastha should eat food only after outside his home. He calls everybody hungry, right? And if somebody is hungry, he feeds them and then he eats. Atiti dharma, charity dharma and all that. Only then he eats. That's the actually rule of the grahastha. अभी आज के डेट में हम प्रैक्टिकल है, लेकिन फिर भी कुत्ता का रोटी, गाय का रोटी वो सब तो करना चाहिए, you know, because the spirit is you are not cooking for yourself and certainly we have to cook for Krishna. Right? और प्रसाद देना चाहिए सबको जितना दे सकते हैं। तो the rule is, it is indeed a rule कि गाय को धोने में जितना समय लगता है उतना समय के लिए गृहस्थ has to wait outside कि कोई हंगरी तो नहीं है, उसके बाद उसको खाना खाना चाहिए। Because grahastha is supposed to feed the whole society. You see how precise our shastras are. Who is the earning person in the whole society? Brahmachari, grahastha, vanprastha, sannyas. Grahastha. So that's why these things make sense now, right? भगवान ने अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग धर्म बनाया, सबको अपना-अपना धर्म पालन करे तो सोसाइटी बहुत अच्छे से चलेगी. Whether it be पुरुष और स्त्री, whether it be ब्राह्मण, you know, all these things. तो now एक तरफ ये रूल है ना, इसका मतलब ये है क्या कि हर समय कोई ना कोई आते ही रहे, एक के बाद एक और ये बेचारा खाने न खा पाए सुबह से रात तक, तो ये गड़बड़ हो गया। You see, similarly, अगर किसी में हम ऐसे अभाव देखते हैं तो हमें वो नहीं देखना। इसका मतलब ये है कि अब हम ये अभाव अपने अंदर रखें। अगर हम इनको हटा सकते हैं, let's say, I know that in temple hall you should be clean, पर नाक में उंगली करना, मुंह में उंगली करना, you know, once you know, I heard this nice poem of children. आंख में अंजन, दांत में मंजन, नितकर नितकर नितकर, नाक में उंगली, कान में उंगली, मतकर मतकर मतकर। ये अच्छी राइम से बच्चों को सिखानी चाहिए, ये सब तो बचपन से अच्छी हैबिट बन जाएगी, राइट? एनीवे वी नो, सो दिस इज इम्प्योर, सपोज्ड टू बी इम्प्योर, राइट? सो नाउ व्हेन वी आर लर्निंग, व्हेन वी आर स्टूडेंट्स, जितना ये सारी चीजें सीख ले अच्छा रहेगा, तो कल को हम ऐसे सीनियर नहीं बनेंगे जो ऐसा कर रहा हो, राइट? तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। अगर मान लो कोई सीनियर जो ऐसा कर रहा है, तो तब हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई? ये सब छोड़ो, ये सब नहीं देखो। यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इट्स ऑलवेज दैट वे। ये जब हम समझते हैं ना, देन यू कैन बी अ प्रोग्रेसिव डिवोटी। और नॉर्मली हम क्या करते हैं, खुद अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते, दूसरे के ऊपर अप्लाई करते हैं पहले। देखो अच्छा इससे सीखा नहीं है क्या हो, नॉट लाइक दैट। दूसरे को आप छोड़िए, आप सीख लीजिए ये सब, जिससे कि आप ऐसा लीडर बने, जिससे कि जो भी आपके हाथ में है आप वो सब करें। लेकिन जब हम किसी लीडर को देख रहे हैं जो चीज उनके हाथ में नहीं है, जो भी जैसा उनका ब्रेन में उसमें से कोई जो भी कुछ कर रहा है, दैट्स फाइन, वंडरफुल, यू नो, वी हैव टू सी देयर भक्ति, वी हैव टू सी देयर सर्विस टू कृष्णा। दीस थिंग्स आर ट्रेनिंग, दीस थिंग्स आर ट्रेनिंग। सो रूप गोस्वामी ने से लाइक दैट, being situated in his original Krishna conscious position, a pure devotee does not identify with the body. Such a devotee should not be seen from a materialistic point of view. Indeed, one should overlook a devotee as having a body born in low family. सोचो कोई मुस्लिम डिवोटी है, नो प्रॉब्लम, या कोई दूसरे कास्ट का है, कोई जिसको भी आप लो बर्थ समझते हो, या कोई जो भी कुछ भी गलत धारणा है वो सोसाइटी की, मान लो कोई आ जाए, नो प्रॉब्लम, कृष्णा कॉन्शियसनेस ओपन टू ऑल। एक बार एक भक्त ने बोला, बहुत बार ऐसा होता है भक्त डिस्कस करते हैं कि हम कैसे भक्ति में आए, हमको क्या प्रेरणा देता है भक्ति में। तो इन चौपाटी वन डिवोटी वाज टेलिंग, फर्स्ट डे आई केम टू टेंपल, आई सॉ टू पीपल होल्डिंग हैंड्स एंड डांसिंग, एंड हु वर दोस टू पीपल? वन वाज मिस्टर मफतलाल,
द ओनर ऑफ मफतलाल फैब्रिक्स. जब हम सब छोटे थे तो वी हैव हर्ड मफतलाल फैब्रिक्स बहुत फेमस था. ओनर ऑफ मफतलाल एंड हिज ड्राइवर, they were holding hands and dancing. He said, I got so touched. And then once upon a side, I saw one black person and a white person holding hands and dancing. He was talking about Bhakti Tirth Swami Maharaj and Radhanath Swami Maharaj holding hands. So he said that when I saw these things, you know, I thought, yes, this is the place which is beyond caste. Boys and girls, they hold hands and dance. You know? Some things are social etiquettes, right? But beyond that, caste, creed, religion, we are beyond all of that. You know? Gender, we are beyond all of that because this is a platform of soul. सोल. अभी कुछ लोग क्या बोलते हैं, देखिए अपसंप्रदाय बहुत होते हैं, यूट्यूब गुरुज भी बहुत होते हैं. बोलेंगे देखो मैं तो एक लड़की के साथ नाच रहा हूँ, आपको पता नहीं, आप लोग छोटे लोग हो, आप शरीर के स्तर पे सोच रहे हो, हम तो आत्मा के स्तर पे इसलिए इसके साथ नाच रहे हैं. सही है कि गलत है? जो एडवांस होता है वो सही एग्जाम्पल पहले सेट करता है. आप एडवांस होंगे पर जो जनता खड़ी है वो तो एडवांस नहीं है ना, वो तो उसको गलत ले लेगी. You see what I'm trying to say? इसलिए always both ways, everything, right? And therefore, even pure devotees, they don't show their ecstatic symptoms in public. Prabhupada always tried his best to not reveal his ecstatic symptoms. एक दो बार हुआ है जयराधा माधव के समय, उनके आंख से आंसू आ गया, he froze and things like that. Otherwise, Prabhupada used to say that, you know, a pure devotee should as much as possible try to control these symptoms because people will start imitating. और वो हुआ है, बहुत सारे अपसंप्रदाय ऐसे ही बने हैं. You know, they imitate those symptoms of gopi bhav or this, that and everything. And then, you know, only some nonsense happens in the name of bhakti. And cheating happens in the name of bhakti. So, लेकिन जो आत्मा के स्तर पर होता है, actually they are not affected by these things. Such a devotee should not be seen from a distance. Indeed, one should overlook a devotee as having a body born in low family, a body with a bad complexion, a deformed body, or a diseased or infirm body, whatever it may be. According to ordinary vision, such imperfections may seem prominent in the body of a pure devotee, but despite such seeming defects, the body of a pure devotee cannot be polluted. जैसे गंगा जी वही है. It is exactly like the waters of the Ganges, which sometimes during the rainy season is full of bubbles and foam and mud. The Ganges waters do not become polluted. Those who are advanced in spiritual understanding will bathe in the Ganges without considering the condition of the water. तो जो एक वरिष्ठ भक्त होते हैं, वो क्योंकि भक्ति में कनेक्टेड हैं, वो तीन गुण से परे हो जाए. जितना वरिष्ठ हो उतना उतना वो हो जाएगा. जैसे कोई प्योर डिवोटी है तो पूरा तीनों गुणों से परे है. कौन से तीन गुण? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से परे है, राइट? और इसीलिए वो पूरा ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है. जैसे बोलते हैं ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वजन. 4.9 भगवद गीता, राइट? Wherein we say that how Krishna is telling that उनका जो जन्म है और कर्म है वो क्या है? दिव्य. जन्म कर्म च मे दिव्यम. जस्ट लाइक ये कृष्णा के लिए ट्रू है, ठीक उसी प्रकार ये किसके लिए ट्रू होता है? कृष्ण के शुद्ध भक्तों के लिए भी ट्रू होता है. प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि एक रॉड, लोहे की रॉड को अगर हम अग्नि में रखे नहीं थोड़ी देर के लिए, तो रॉड भी क्या बन जाती है? रेड हॉट, फायरी. और वो जो टिप है आगे का, उसमें और अग्नि में कोई फर्क दिख रहा होता है क्या? कोई फर्क नहीं होता है. ठीक उसी प्रकार जब एक शुद्ध भक्त, बिकॉज ही इज कंप्लीटली कनेक्टेड टू कृष्णा, बिकॉज ही और शी इज कंप्लीटली कृष्णा कॉन्शियस, बिकॉज ही और शी इज कंप्लीटली 24/7 एंगेज्ड इन कृष्णा सर्विस, दे हैव आल्सो बिकम कंप्लीटली दिव्य. और इसीलिए हम उनका आविर्भाव और तिरोभाव सेलिब्रेट करते हैं. आपने देखा अभी कल परसों क्या था? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरोभाव दिवस था. तिरोभाव, आविर्भाव मतलब अपीयरेंस, तिरोभाव मतलब, इसलिए हम इनका बर्थडे नहीं बोलते. क्या बोलते हैं? अपीयरेंस डे. डेथ नहीं बोलते. तिरोभाव, डिसअपियरेंस. जैसे सन है, सुबह होती है तो प्रकट हो जाता है, नहीं बोलते अरे सन पैदा हो गया, चलो लोग बोले हैप्पी बर्थ, नहीं. अरे मर गया सन, किधर गया रात को? नहीं. उदय हो गया, अस्त हो गया, प्रकट हो गया, अप्रकट हो गया. ठीक उसी प्रकार भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त, ऐसा. तो दैट इज व्हाई दे आर दिव्य. इसीलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं या जो सन्यासी होते हैं, जब वो अपना देह छोड़ते हैं तो उनके देह को क्या करते हैं? रिजर्व रखते हैं, जलाते नहीं. क्योंकि जलाते क्यों है? ये अंतिम संस्कार का कंसेप्ट क्या है कि जो अपने शरीर से अटैच होते हैं, और ये लोग शरीर से परे हैं, अटैच नहीं है शरीर से. तो जो शरीर से अटैच्ड होते हैं उनके शरीर को क्यों जलाते हैं? आपको पता है? जिससे उसका लास्ट जो अटैचमेंट है ना वो हट जाए और उसको वो दूसरी जगह चला जाए, नहीं तो वहां भटकते रहता है. ऑल दीज थिंग्स, देयर आर प्रॉपर रीजनिंग बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स. अब जो शुद्ध भक्त है उसको तो कोई अटैचमेंट नहीं है शरीर से, इसलिए जलाते नहीं. यू सी, यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? एंड चिल्ड्रन, सो लाइक दैट. सो या, सो अभी वेरी क्विकली वी विल सी फ्यू एस्पेक्ट्स ऑफ दिस श्लोका. एज सच एसेंस वी हैव डिस्कस्ड ऑफ दिस श्लोका. तो पहला हमने क्या बोला? जो यहाँ पे शुद्ध भक्त की बात हो रही है, प्योर डिवोटी की. तो प्रभुपाद says one who has taken complete shelter of Radharani, Lord's internal energy, that is a pure devotee.
He is fixed up in pure devotional service. That is a pure devotee. अभी pure devotional service क्या है? हमने रिमेंबर नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन शुरू करने के पहले कौन सी बुक कर रहे थे हम लोग? नेक्टर ऑफ डिवोशन. हिंदी में क्या बोलते हैं उस बुक को? भक्ति रसामृत सिंधु. उसमें इफ यू रिमेंबर शुद्ध भक्ति की, प्योर डिवोशन की डेफिनेशन थी. किसी को याद है श्लोक? किसी को याद है? बोलिए मेरे पीछे. अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम कृष्णानुशीलनम अनुकूलेन भक्ति उत्तमा. अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम. अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा. What are the characteristics of उत्तम भक्ति, शुद्ध भक्ति, प्योर भक्ति? We will not get into details. ये हमने डिस्कस किया है पहले. इसलिए हर रविवार सुबह आइए. Some of us are thinking a lot about what we should be doing in these Sunday morning programs. तो अभी नए साल से और हम अनाउंसमेंट करेंगे आज की, और भी बहुत सारी चीजें होने वाली हैं. चलो अभी बोल ही देता हूँ. नए साल से हम लोग क्या करने वाले हैं कि भागवतम उठाएंगे. भागवतम का में बहुत सारे एपिसोड्स हैं. भागवतम में बहुत सारे सेक्शंस हैं. वो सेक्शंस और एपिसोड्स को वन बाय वन फ्रॉम फर्स्ट कैंटो टू लास्ट कैंटो लेंगे. श्लोका बाय श्लोका और टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे. वो सब भक्ति वैभव, भक्ति शास्त्री, वो सब में होता है. वी आर नॉट गोइंग इनटू श्लोका बाय श्लोका और चैप्टर बाय चैप्टर और डिटेल्स एंड टेक्निकलिटीज नहीं. पर हाई लेवल पे जो पास टाइम्स हैं या जो स्टोरीज हैं और जो सेक्शंस हैं, एपिसोड्स हैं, एक एक करके उठाएंगे और उसमें से 3-4 मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन्स. दैट्स व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन अ सीरीज फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू ईयर, राइट? बट एनीवे, पॉइंट इज दैट इन दीस क्लासेस मेनी थिंग्स गेट डिस्कस्ड. जो जो आते जाएंगे धीरे धीरे पकेंगे वो. आप देखो पेड़ पे जब आम लटका होता है, अब उसको आप तोड़ लो तो क्या होगा? कच्चा रह जाएगा, है ना? अब कार्बाइड से पकाओ, पेपर लगा पकाओ, दैट्स आर्टिफिशियल वेज. पर सबसे बेस्ट क्या होगा उसके लिए? आम के लिए जुड़ा रहे. और पूरे पेड़ में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उस आम के लिए? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ मैंगो इन द एंटायर ट्री? वो जिससे जुड़ा है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. दैट्स आवर मेंटर. दैट्स आवर मेंटर. दैट मेंटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ डिवोटी. Through that, we will get this way portion, all nourishment will happen, we will grow, we will become pakka devotee. So we don't have to become, Prabhupada writes in one place, ripe mango and raw mango. हमें कच्चा आम नहीं बनना है, हमें पका हुआ आम बनना है. और जितना जल्दी ये सब कर लेंगे, एक्चुअली भक्ति के शुरू के 5 सालों में सारा ट्रेनिंग हो जाना चाहिए आइडियली. फर्स्ट 5. इनफैक्ट हमारा पूरा चार्ट है कि इन फर्स्ट ईयर व्हाट ऑल थिंग्स वी शुड नो. वैष्णव भजन कौन कौन से आने चाहिए एंड ऑल दैट, आचार्यों के बारे में, गौड़ीय वैष्णविज्म के बारे में. सेकंड ईयर में क्या क्या होना चाहिए, थर्ड ईयर में. नॉट लाइक अ सिलेबस पर से, बट यू अंडरस्टैंड द स्पिरिट ऑफ इट, राइट? जैसे हमारे जो शिक्षा स्टेप्स है, भक्ति स्टेप्स है, शिक्षा सेरेमनी है, उसमें भी है कि अच्छा ये बुक्स आनी चाहिए 1 राउंड तक, ये बुक. व्हाई आर दीस थिंग्स देयर? बिकॉज़ दिस इज अ नेचुरल प्रोग्रेशन. अब सोचो कोई 15 साल का बच्चा है, उसको एबीसीडी नहीं आती, कैसा लगेगा? अटपटा होना उस बच्चे, वो बच्चा का भी पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाएगा, वो बेचारा किसी के बीच में खड़ा ही नहीं हो पाएगा. यू सी, इसलिए सही समय पर सही ट्रेनिंग धीरे धीरे मिलते रहती है ना, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारा एबिलिटी टू इंस्पायर अदर्स बढ़ता है, हमारा एबिलिटी टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर पीपल टू कृष्णा बढ़ता है. So इसलिए if we have come in touch with devotees who can give us such training, we should be fortunate and we should receive this training eagerly. And I've seen many of you are so sincere. You ask, अच्छा ये कैसे करते हैं, वैसे करते हैं, और फिर शर्म नहीं, क्योंकि देखो पहला 5 साल भक्ति में क्या शर्म? वैसे भी आइडियली तो 50 साल और भी शर्म नहीं होनी चाहिए. Those who are really senior devotees, they will always bow down and always want to learn. They will always want to learn. लेकिन फिर सामने वाला को थोड़ा awkward लग रहा है, यार ये तो मुझसे सीनियर है, इसको मैं कैसे बताऊं? फिर वो awkward तो कहाँ, तो वो अच्छा समाज नहीं है भक्तों का. awkward ही चल रहा है सब, right? So you see the role of training and education, and Prabhupada emphasized training and education a lot. अच्छा, कोई फिलोसफी में ट्रेन हो सकता है, पर सबको को उतना फिलोसफी में एडवांस ट्रेनिंग होने का जरूरत नहीं. लेकिन कल्चर में तो सब कोई ट्रेन हो सकता है. उसके लिए तो कोई बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल एबिलिटी नहीं चाहिए. यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दैट इज इंपॉर्टेंट. और ये किसका रिस्पांसिबिलिटी है? दोनों म्यूचुअल है. द लीडर्स एंड द मैनेजर्स हैव टू फैसिलिटेट इट एंड द डिवोटीज हैव टू बी ईगर टू ग्रैब इट. और कभी हमें नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा लेक्चर में जो है वही सेम बातें हो रही है. अरे अल्टीमेटली तो भक्ति के जो एब्सोल्यूट होते हैं वो सेम ही बातें हैं, और उसी को कभी ऐसे बोलते, कभी ऐसे बोलते, कभी कुछ बात स्पीकर्स के रियलाइजेशंस और स्पीकर्स के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे होती है, अलग-अलग बातें, राइट? एंड एवरी एक्सपीरियंस इज एक्चुअली मेकिंग अस मोर एंड मोर नरिश्ड. सो देयरफॉर दीस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट.
So pure devotional service is अन्याभिलाषा शून्यम, without any desires. ज्ञान कर्म से ऊपर है, वो ज्ञान कर्म से रहित है. अनुकूलेन, favorable to Krishna, प्रतिकूल नहीं, अनुकूलेन. Krishnanushīlanam and Anushīlanam. It's a matter of cultivation. Anushīlanam. These things we had discussed in that time. And there is one more shloka in Bhagavatam, Savai Pumsa Paro Dharmo, Yato Bhakti Radokshajya. Ahaituki apratihata, ye Atma Suprasidhati. Ahaituki apratihata means, ahaituki matlab without any selfish desire. And apratihata matlab no Saturday, Sunday, no break, no interruption. That is Shuddha Bhakti. Right? तो जो डिवोटीज ऐसे शुद्ध भक्ति के पथ पर लगे हुए हैं, के मार्ग पर लगे हुए हैं, उनको भी शुद्ध भक्त समझना चाहिए. प्रभुपाद बोलते हैं, one who is trying to become a pure devotee is also a pure devotee. और जैसा हमने देखा, ये शुद्ध भक्त क्योंकि कृष्णमय है, क्योंकि कृष्णमय है, इसलिए वो कैसा है? दिव्य है. तो इसलिए उसको शारीरिक त्रुटि, शारीरिक दोष उसके नहीं देखने चाहिए. That's what is the main example of this. अब जैसे मान लो किसी का इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस बहुत हो सकता है, किसी को सारे श्लोक याद है, पर मान लो एक वरिष्ठ भक्त है जिसको श्लोक याद नहीं है. ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या लगता है आपको? तो ये तो बुद्धि का खेल है ना. तो अगर हम उसका ऐसा तिरस्कार करें, नहीं गलत है. और तो हमें क्या करना चाहिए? when we are growing up, what we should do? We should try our best to memorize as many shlokas as we can. You see what I am saying? So it's always this both ways. मान लो कोई spiritual master है, and many spiritual masters if you see currently, many spiritual masters, it may happen that they are not as scholarly as so many new generation devotees. You have seen that? You've seen that? I will not take names on both sides, but I'm sure you are understanding, right? But who is more advanced in Krishna consciousness? Because bhakti is beyond jnana and karma. Bhakti is beyond jnana and karma. It's not about scholarship. But when we are growing, the more we try to learn, the better. You see? This is how everything has to be understood. Not that, नहीं प्रभु जी मुझे श्लोक याद नहीं करना एक भी, क्योंकि आपको पता नहीं क्या भक्ति is beyond jnana and karma. ठीक है, नहीं याद हो रहा तो मत करो. लेकिन कोशिश है. Prabhupada said our my devotees should be like lawyers. They should be quoting law books like left and right. You should try. और उसके टेक्निक्स है बहुत सारे. जैसे पिछले बार कृष्ण प्रभु had taught us, right? एक लाइन को 3 बार बोलो, फिर 2 लाइन को 3 बार बोलो, फिर पूरे श्लोक को 3 बार बोलो. और एक बात बताइए, some of us have grown up seeing our parents doing some आरती, some पूजा. किसी का है ओम जय जगदीश हरे, नॉर्थ इंडिया. किसी का नॉर्थ इंडिया में दूसरा राम जी का श्री रामचंद्र कृपालु भज. किसी का है कुछ होगा कौशल्या सुप्रभा, जो भी है वो अपना. तो बच्चे जो होते हैं उस घर में ये देख के उनको याद हो जाता है. किसी का हनुमान चालीसा होगा, श्री गुरु चरण, यू नो लाइक दैट. तो तो बच्चे कभी बैठ के याद किया क्या उन्होंने? तो उनको कैसे याद होगा? बाय रिपीटिशन. ब्रेन वर्क्स बाय रिपीटिशन. तो श्लोका को मेमोराइज करने का सबसे बड़ा रामबाण पता है वो क्या है? रिसाइट इट अगेन एंड अगेन. पेरेंटिंग वापस. चिल्ड्रन के लिए श्लोका रिसाइटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे उनको मीनिंग आए चाहे नहीं आए, स्पेशली टिल 7 years of age. Because till 7 years of age they can memorize the whole world, and the more they memorize the better for them, because memory is a very important aspect of genius. Memory is a very important aspect of genius. So और पहले गुरुकुल वगैरह में ये सब होता था, उच्चारण, याद करो, रिसाइट करो. ब्रेन की एक्सरसाइज है. See when somebody goes to जिम जाते हैं तो क्या करते हैं हम? एक्सरसाइज करते हैं. आप मसल्स को यूज करते हो जिससे कि वो मसल्स स्ट्रांग होता है. ठीक है. ब्रेन को अगर ग्रो कराना है तो ब्रेन को रिलैक्स करके कंबल उम्बल उड़ा के तकिया बिछा के बैठा देना चाहिए. ब्रेन को अच्छे से चादर उड़ा के तकिया पे बैठा के सुला देना चाहिए ब्रेन को, तो ब्रेन ग्रो करेगा. व्हाट डू यू फील व्हेन वी वॉच वीडियोस? दैट्स व्हाट हैपेंस. अब हम लोग तो चलो ठीक है. सी वीडियो का एक एडवांटेज है, एक डिसएडवांटेज है. व्हाट इज द एडवांटेज? इंफॉर्मेशन बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है. तो आपके लिए हमारे लिए ठीक है. कौन दिमाग लगाएगा? चलो 2 मिनट में वीडियो में बता दिया क्या है. भूकंप कैसे आता है, अर्थक्वेक कैसे आता है. यू हैव 2 choices. एक बुक पढ़ लीजिए उसके बारे में, एक 2 मिनट का वीडियो देख लीजिए, एनिमेशन वगैरह से अच्छे से बता देगा. किसमें जल्दी समझ में आ जाएगा? बच्चे को ऐसे समझाएंगे. बच्चे को क्या देना चाहिए? बुक की वीडियो. क्यों? उसे तो अच्छे समझ में आ रहा है, इजी समझ में आ रहा है. प्रॉब्लम क्या है? ग्रो कैसे करेगा ब्रेन उसका? इजी समझ में आ जाएगा. तो एक छोटे बच्चे का डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, वीक होता है, तो उसको कैसा फूड देते हैं? पूरा एकदम आपका राइस चावल दाल देते हैं क्या? छोटे बच्चे को पैदा होते हैं क्या देते हैं? दूध देते हैं. खाली वही 50 का, वही खाली माँ का दूध. करेक्ट.
1 साल का हो गया, अब क्या देते हैं उसको? फिर भी पूरा दे देंगे, छोला भटूरा वो सेरेलैक वगैरह रहता है, प्री डाइजेस्टेड रहता है, पचा पचाया खाना आप उसको देते हो, चलो थोड़ा बहुत पचा लेगा, धीरे धीरे उसकी पाचन शक्ति डेवलप होती है। अब आप प्री डाइजेस्टेड फूड खाओगे तो आपका डाइजेशन शक्ति स्ट्रांग होगा कि कमजोर हो जाएगा? तो जिसका ग्रो करना होता है उसको फिर वहां पे थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ता है, तब तो ग्रो करेगा। मसल को हम ऐसा बैठा के खाली छोड़ देंगे तो ये मसल स्ट्रांग बनेगा? मसल को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। जो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर वगैरह के पास आप जाओगे, अगर आपको कोई मसल प्रॉब्लम बोलेगा ठीक है एक काम करो, एक पानी का बोतल भरो 1 लीटर का, ऐसे ऐसे करो। बिकॉज व्हेन यू स्ट्रेच, व्हेन यू एक्सटेंड, व्हेन यू एक्सरसाइज, देन थिंग्स हैपन। सिमिलरली फॉर ब्रेन, तो ब्रेन का जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो होता है श्लोका मेमोराइजेशन, दैट्स हाउ आई वेंट इनटू दैट। तो जो ऐसे भक्त होते हैं जो भगवान के प्रति निष्ठ हैं, उनके प्रति अपराध से बचना चाहिए। और जब इस तरह की चीजों को देखते हैं तो क्या होता है? अपराध होता है। जब उनके शारीरिक स्तर की कुछ चीजों को देखते हैं तो अपराध होता है। और चैतन्य महाप्रभु इस अपराध को बताते थे मैड एलिफेंट ऑफेंस। जब वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं, हाथी माता, मैड एलिफेंट ऑफेंस। मैड एलिफेंट ऑफेंस क्यों बताते हैं? वी हैव डिस्कस्ड वंस, एनीबॉडी रिमेंबर्स? कि हम भक्ति लता, भक्ति का गार्डन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप गार्डन बना रहे हो, बड़ी मेहनत से एक एक पौधा सींच रहे हो, डेली उसके जाके बात करते हो, पानी डालते हो, ऐसे कर रहे हो, हाँ? और एक खुला हाथी, पागल हाथी आके घाव घाव घाव। सो वैष्णव अपराध करके ऐसा हो जाता है, मैड एलिफेंट ऑफेंस। तो वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। हु इज द सुपीरियर वैष्णव? सी दिस इज इंपॉर्टेंट। हमसे वरिष्ठ भक्त कौन है? सीनियर मतलब बहुत कुछ हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? पहला तो सबसे मेन हो गया डिपेंडिंग ऑन स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। और स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कैसे डिसाइड होता है? किसका कृष्ण के प्रति कितनी श्रद्धा है, कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है, चैंटिंग कैसी होती है, सेवा में कितना रुझान है, एंगेज है वगैरह। दूसरे और सीनियर्स कौन होते हैं? मैनेजरली जो सीनियर्स हैं, दे मे बी स्पिरिचुअली लेस एडवांस्ड आल्सो, बट मैनेजरली आल्सो समबडी मे बी सीनियर। एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज कभी कभी हम देखते, कोई वरिष्ठ भक्त ने पूछा था कि हमारे जो मंदिर का अध्यक्ष है वो मुझसे वरिष्ठ नहीं है। ऐसा नहीं बोला उन्होंने, कहने का मतलब कि दिख रहा है कि वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एडवांस नहीं है, या मान लो कोई इंचार्ज है किसी डिपार्टमेंट का, आप समझ रहे हैं, और हमको पता चल रहा है कि वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एडवांस नहीं है, तो महाराज क्या करना चाहिए? कोऑपरेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आपको क्या लगता है? महाराज ने बोला ऐसी सोसाइटी, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का क्या कमाल, क्या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में क्या खास होगा जब केवल शुद्ध भक्तों को ही कोई फॉलो कर पाए? ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस क्या होगा कि इवन व्हेन अ मैनेजर इज नॉट अ प्योर डिवोटी, एवरीबॉडी इज फॉलोइंग एंड कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। प्योर डिवोटी होगा तो सबको गिरी जाएंगे उसके सामने, करेक्ट? पर अगर कोई प्योर डिवोटी नहीं है, पर प्रभुपाद ने या प्रभुपाद के शुद्ध भक्तों ने उसको अधिकृत किया है, ऑथराइज किया है यहाँ पर उसको इस पोस्ट में रहने के लिए, राइट? और जब तक वो इनकी आज्ञाओं का अच्छे से पालन कर रहा है, तब तक वो जो बोल रहा है सब उसको कोऑपरेट करे, चाहे वो प्योर डिवोटी खुद ना हो। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? दैट इज द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। That is the success of an organization. Yes, you will not take spiritual inspiration from this person. Spiritual inspiration you will take from somebody who is more spiritually advanced. But from a managerial perspective, from an organization perspective, you have to cooperate. नहीं तो cooperate ही नहीं होगा तो कुछ होगा ही नहीं फिर। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। And yes, if he is not following the instructions of the guru and spiritual authorities, then we have to approach the senior and tell. Approach somebody else, his authority, and tell. Submissively, humbly. You see both points, all these are very important. These are all part of our training and our going. Because bhakti is not just a matter of sitting and chanting here. We want to go out, we want to take responsibility, we want to preach, we want to get more and more people. More and more people means more and more difference of opinions, more and more quarrels. Huh? You will not be what you are today. You will also grow. You will have more people under you. You will be facilitator, mentor, preacher. So if we are not trained in the final aspects of bhakti, we will pass on a very wrong example of bhakti. So it's very important. फिर practically practicing KC for more number of years. देखिए, and this is maybe one last point and I'll end with this. Prashadam has come, Prabhu? Okay. Prashadam is my signal typically. So एक डॉक्टर जो होता है, हम क्या बोलते हैं नॉर्मली? डॉक्टर को हम बोलते हैं जॉब कर रहा है कि माइक भी उसी समझ में बात होता है। डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं? जॉब कर रहा है कि प्रैक्टिस कर रहा है? लॉयर को क्या बोलते हैं? जॉब कर रहा है कि प्रैक्टिस कर रहा है? क्यों? क्योंकि ये जो चीजें हैं इसमें जो जितना प्रैक्टिस करता है, जो जितना ज्यादा टाइम से होता है, उतना ज्यादा सीनियर होता है। और जब तक आप इंटर्नशिप नहीं करोगे, यू कैन नॉट बिकम अ डॉक्टर विदाउट अनलेस यू डू internship under a doctor. You cannot become a lawyer unless you do internship under a lawyer. You know this? You know this? Engineer बन सकते हैं। क्यों? Engineer में is not about art. Engineer is about books and all that.
इंटर्नशिप कोई बच्चा फ्री है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर कर लेता है, नहीं भी करता है तो भी इंजीनियर तो बन ही जाता है. यू सी द डिफरेंस? दैट्स ऑल अबाउट मशीन्स. देयर इज नो आर्ट देयर, इट्स नॉट अबाउट प्रैक्टिस देयर. बट लॉयर, मेडिसिन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. एंड देयरफॉर जो ज्यादा दिन से प्रैक्टिस कर रहा है वो ज्यादा सीनियर. ना कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है? साइंस है कि आर्ट है? मैंने बताया था जब हमको भक्ति में थोड़ा समय हो जाता है तो जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर क्या होता है? करेक्ट. प्रचार करे कि साधना करे? घर में घर को देखे कि मंदिर आए? कृष्णा कॉन्शियसनेस साइंस है कि आर्ट है? क्लियर? इनफैक्ट लाइफ लॉन्ग तो आर्ट है. शुरू में भक्ति के 4-5 साल वी आर अंडरस्टैंडिंग द भक्ति तत्व, गुरु तत्व, यू नो ऑल डिफरेंट तत्वास, है ना, एंड देन वी आर लर्निंग द साइंस मेनली, राइट. बट लाइफ लॉन्ग व्हाट इज इट? हाउ आर्ट. मेरे जॉब में क्राइसिस आ गया. हाउ टू रिमेन कृष्णा कॉन्शियसनेस व्हेन जॉब इज इन क्राइसिस. पति और पत्नी में बहुत जबरदस्त झगड़ा हो गया. हाउ टू रिमेन कृष्णा कॉन्शियस इन दैट सिचुएशन. सम टफ सिचुएशंस हैव कम इन लाइफ. How to remain Krishna consciousness in that. How to be Krishna conscious in thick and thin, in ups and downs. जो जितना देर से टिका हुआ है, आपको क्या लगता है उसने ये सब देखा है कि नहीं देखा? क्या लगता है आपको कि कुछ लोगों का लाइफ ऐसा होता है जो एकदम ऊपर ही ऊपर चल रहे होते हैं, वो जमीन पे आते ही नहीं? ऐसा किसी का लाइफ नहीं है. चाहे राम हो, चाहे जनक महाराज हो, चाहे चित्रकेतु हो, चाहे कोई भी हो, चाहे भागवतम के कितने भी कैरेक्टर्स हो. In fact, those things are mentioned in Srimad Bhagavatam so that you understand कि आप कोई भी हो आपके जीवन में tough times आएंगे. तो now try to understand why they are considered senior. One who is practicing for more time and currently also wonderfully practicing, chanting 16 rounds, following 4 principles, pleasing Hari Guru and Vaishnavas, doing services nicely. And for 20 years, 30 years, what does that mean? That's why we should respect them and worship them as our senior. Now imagine, परम पूज्य जय पताका महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज, राधानाथ महाराज, लोकनाथ महाराज, ऑल नवयोगेंद्र महाराज, कब कितने साल से सन्यासी हैं ये लोग. चलो उतना बड़ा छोड़ो, छोटे पे आ जाते हैं. हमारे ब्रह्मचारी जो हम देखते हैं आसपास, अगर कोई ब्रह्मचारी 20 साल से ब्रह्मचारी है, व्हाट डज इट मीन? कैन यू इमेजिन ब्रह्मचारी लाइफ? स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस दे फॉलो. एंड इमेजिन इफ समबडी हैज डन दैट डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे फॉर 20 years. हम लोग कभी कभी थोड़ा मोड़ा इधर उधर करा के समाओ गाड़ी चला के भी लगता है कि भाई हमको समझ में आ रही है बातें, थोड़ा एडवांसमेंट हो रहा है, थोड़ा भक्ति के जो तत्व हैं समझ में आ रहे हैं. नाउ इमेजिन दोस पीपल हु आर डूइंग दिस डे एंड आउट सिंसियरली, नाइसली फॉर 20 years, हाउ सीनियर दे वुड बी. व्हाट वुड बी द स्टेट ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस एंड रियलाइजेशन. देयरफॉर वी बाउ डाउन. In fact, it is also said that let's say there is a senior grahastha, but if there is a saffron person, the grahastha is supposed to bow down and worship and respect. Why? Because saffron carries that respect, social respect. So all these things we have to understand, and we should not judge anybody about regarding their spiritual advancement. Never. So ये सब है. तो senior in age, अभी senior in age का spiritual advancement से connection नहीं है, but respect वाला connection है. इसको हम लोग बोलते हैं वरिष्ठ वैष्णव, जो elderly है age में. उनके पास बहुत सारा विजडम भी है, ऐसा नहीं है, राइट. एंड ओके, दे मे नॉट बी स्पिरिचुअली एडवांस बिकॉज दे हैव जस्ट कम नाउ, राइट नाउ, बट बिकॉज दे आर सीनियर वी हैव टू रेस्पेक्ट देम, वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम, लाइक दैट. ऑल दैट इज आल्सो देयर. जैसा मैंने बताया, ये सब बातें केवल प्योर डिवोटीज के लिए नहीं हो रही है. दिस इज फॉर एनीबॉडी हु इज मोर एडवांस्ड देन अस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. एंड देन वेरी क्विकली जो यहाँ पे बातें थी, एक था बॉडीली डिफेक्ट्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड, दूसरा था बेस्ड ऑन बर्थ. जैसे प्रभुपाद बताते हैं परपोर्ट में कि कुछ लोगों का गोस्वामी टाइटल होता है, राइट. तो प्रभुपाद बताते हैं गोस्वामी इज नॉट अ मैटर ऑफ टाइटल, गोस्वामी इज अ मैटर ऑफ कंट्रोलिंग माइंड एंड सेंसेस, जो हमने एनओआई के फर्स्ट वर्स में देखा था. अच्छा, आपको शास्त्रों में, वी जस्ट एंड विद सम एग्जांपल्स ऑफ शास्त्रास. डू यू नो एनी एग्जांपल्स फ्रॉम शास्त्रास वेयरइन किसी ने किसी का अपमान किया है बेस्ड ऑन बॉडीली थिंग्स? किसी का आपको याद है? आपको किसी का? हाँ, yes Mataji, anybody? हाँ, करेक्ट. अभी हम बात कर रहे हैं ऐसे अपराधों की जो बॉडीली डिफेक्ट के बेसिस पर है. मटेरियल विजन बॉडीली डिफेक्ट के बेसिस पे किसी को कोई अपराध याद है? सामने वाले के अंदर कोई बॉडीली डिफेक्ट, अष्टवक्र वाज डिफॉर्म्ड एट 8 places, उसका अपराध किया था. दूसरा, हाँ, कुब्जा का अगर कोई अपराध करे तो वैसा हो जाएगा.
वैसे उदाहरण उसमें आता नहीं वर्णन। दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान किया था, बोला था क्या ये कपड़ा भी नहीं पहनते हो, सांप लेके घूमते हो, शमशान का राख लगा के घूमते हो, क्या बेटी को अपना बेटी को तुमसे शादी करा दिया ब्रह्मा का बात मान के, बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। जबकि शिवजी इज एडवांस्ड, बट ही वाज लुकिंग एट शिवजी बेस्ड ऑन एक्सटर्नल अपीयरेंस, तो अपराध कर दिया। शिशुपाल तो कृष्ण का बहुत सारा अपराधी किया था, बोला था ग्वाला, रिमेंबर भगवान ने शिशुपाल को 100 का वो दिया था परमिशन। आपको पता है ना वो कहानी क्या हुआ था? शिशुपाल पैदा हुआ था, गधे जैसी आवाज निकाला तो उसके बहुत सारे हाथ पैर थे, राक्षस जैसा लग रहा था, माँ रो रही थी, वो माँ कृष्णा की आई थिंक मौसी या बुआ कोई तो थी, तो सबको आकाशवाणी हुई थी कि जिसकी गोदी में जाके इसके हाथ और पैर एक्स्ट्रा वाले चले जाएंगे वही इसका वध करेगा। तो एक एक करके सबको बुला रही थी, सबको पासिंग का पार्सल खेल रही थी। तो उसका कृष्णा की गोदी में बैठाई तो हाथ और पैर गया, अब रोने लगी जोर जोर से। क्यों रोने लगी? मारोगे, तुम्हारा भाई है, कजन भाई है, प्लीज तुम प्रॉमिस करो नहीं मारोगे। कृष्णा ने बोला नहीं मारूंगा तो प्रॉमिस नहीं करूंगा, लेकिन चलो 100 गलती, बड़ी बड़ी 100 गलती तक क्षमा करूंगा। तो बाद में क्या हुआ, गलती करता था। अच्छा नया वाला जो महाभारत है ना स्टार प्लस वाला, उसमें ऐसा दिखाया था कि वो पीकॉक फेदर रखता था अपने पास। असली में क्या था मालूम नहीं, मैं उसका बता रहा हूँ। वो काउंटिंग करके एक एक होता था तो काउंटर जैसा एक एक कम करता था। तो वो जो जब अग्र पूजा हो रही थी, जब राजसूय यज्ञ हो रहा था, तो यू नो हाउ शिशुपाल स्टार्टेड ऑफेंडिंग कृष्णा, ये ग्वाले का अगर पूजा करोगे, इतने सारे बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं और तुमको यही मिला सबसे बड़ा पूजा करने के लिए, एक एक करके करता रहा। और अचानक से अपराधों में उसकी बुद्धि ऐसी मारी गई कि उसको ध्यान ही नहीं रहा कि वो काउंटर उसका खत्म हो गया। और तुरंत कृष्णा ने क्या किया, चक्रा लेके ऑन द स्पॉट इनकाउंटर कर दिया। उस समय उसके पहले, ये शास्त्र में कहीं नहीं आता है, पर वहां पे कृष्णा ने एक डायलॉग बोला था उसके जस्ट पहले, जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, एंड वी कैन अप्लाई दिस इन अवर लाइफ। यू नो व्हाट इज दैट डायलॉग? कृष्णा ने बोला था हिंदी में उसमें, उस सीरियल में, ये मैं शास्त्र का बात नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, इट्स अ वेरी नाइस थिंग फॉर अस टू अंडरस्टैंड। बताया था कि 100 की मर्यादा को 100 की स्वतंत्रता मत समझो। यू अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड? 100 के लिमिट को 100 की फ्रीडम मत समझो। अब ये आप जब गाड़ी ड्राइव कर रहे हो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, अपने जीवन में जहां भी अप्लाई कर सकते हैं। व्हेन सम लिमिट इज गिवन, डोंट थिंक दैट टू बी उतना फ्रीडम, बी विद इन इट। अगर बोला है कि अच्छा हम इंद्रिय तृप्ति थोड़ी बहुत कर सकते हैं गृहस्थ आश्रम में, तो रेगुलेशन, उसको लाइसेंस ना समझें। बहुत बार आप देखोगे कहीं कहीं प्रभुपाद बुक्स में लिखा रहेगा, या कोई लेक्चर में कोई डिवोटी बोलेगा, गृहस्थास हैव लाइसेंस फॉर सेंस एंजॉयमेंट। गृहस्थास हम नरम बिस्तर पे सो सकते हैं, ब्रह्मचारी सो सकते हैं नहीं। हम बैंक बैलेंस रख सकते हैं, ब्रह्मचारी रख सकते हैं नहीं। तो वी हैव सम लाइसेंस। अब लाइसेंस का मतलब क्या? लाइसेंस का मतलब ये नहीं कि अभी आप देखो जो करेंगे करेंगे। जस्ट लाइक इफ यू गेट अ लाइसेंस टू ड्राइव अ 2 व्हीलर और अ 4 व्हीलर, व्हाट डज इट मीन? कि आप फुटपाथ पे, पहाड़ पे, जंगल में किसी के भी सिर के ऊपर से ऐसे ऐसे करके चलाइए, दैट्स व्हाट लाइसेंस मीन्स। व्हाट डज लाइसेंस मीन? रूल्स को फॉलो करके रोड पे चलाइए अच्छे से, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, दैट इज लाइसेंस। लाइसेंस पर हम लोग नाम बोलचाल में लाइसेंस कैसे यूज करते हैं? अरे इसको तो लाइसेंस मिला है इसका। लाइसेंस डज नॉट मीन फ्रीडम, लाइसेंस मीन्स मर्यादा। सो दैट्स व्हाट कृष्णा इज टेलिंग शिशुपाल, 100 की मर्यादा को 100 की स्वतंत्रता मत समझो। दैट्स द मिस्टेक ही डिड एनीवे। सो लाइक दैट। सो या मेनी एग्जांपल्स आर देयर। बर्थ के बेसिस पे क्रिटिसाइज करना, कि अरे ये तो नारी है, ये क्या भक्ति करेगी, अरे ये तो इस कास्ट का है, ये क्या भक्ति करे, अरे ये तो फॉरेनर है, फॉरेनर गुरु कैसे हो सकता है? अपराध, अपराध। ये ऐसा हो गया कि शालिग्राम शिला को कोई पत्थर समझ रहा है, सी बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए ये सब सुनना जरूरी है। इसलिए जो बड़े शुद्ध भक्त होते हैं उनको कभी भी हमको उनके शरीर के बेसिस पे कभी नहीं देखना चाहिए। एक बार एक वरिष्ठ भक्त है, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े वरिष्ठ थे, सोने की घड़ी पहने हुए थे, मतलब गोल्डन टाइप की घड़ी। मेरे अंदर थोड़ा एक सेकंड, मैं बहुत छोटा, मतलब 20-30 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मेरे अंदर आया सन्यासी है, गोल्डन घड़ी पहना है। फिर मैं बोला ये क्या कर रहा हूँ, लाइक दैट। देखो हम लोग का जो स्तर होता है उसी हिसाब से सोचते हैं ना। हम जहाँ जिस स्तर पे होते हैं, द होल वर्ल्ड इज द मिरर ऑफ आवर ओन कॉन्शियसनेस। हम जिस स्तर पे सोचते हैं सामने वाला भी उसी स्तर पर कार्य कर रहा है। प्रभुपाद भी गोल्ड घड़ी पहनते थे, गोल्डन घड़ी, अंगूठी पहनते थे, करेक्ट, बट आर दे अटैच्ड विद इट? निकाल के इस डिसाइपल को दे दिया, वो कर दिया। सोचिए, क्योंकि मैं बताता हूँ क्या हो सकता है, बहुत सारी चीज होती है। सोचिए एक डिसाइपल है एक गुरु का, उसने उसके गुरु को एक गिफ्ट दी घड़ी, राइट? उस घड़ी का और उस गिफ्ट का सम्मान करने के लिए गुरु पहना हुआ है।
आज पहना है कल नहीं पहना है, वो नहीं अटैच्ड है, तुम अटैच्ड हो। यू सी व्हाट आई एम सेइंग, हाउ दीस थिंग्स कैन गो रॉन्ग एंड व्हाट इज द राइट वे टू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स। इसलिए बेस्ट है ये सबको सोचना ही चाहिए। इसलिए ग्रेट डिवोटीज आर टू बी हर्ड, नॉट टू बी सीन। मतलब ऐसा नहीं है कि देखना नहीं चाहिए, हमने आज डिस्कस किया दर्शन पवित्र करो ये तुम्हारा गुण, पर तू देख भी रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, उनके कृष्ण के प्रति निष्ठा, उनके गुरु के प्रति निष्ठा, उनकी सेवा में 24/7 समर्पण। दैट इज हाउ। अदरवाइज गुरु को देख के भी हम उसमें डिफेक्ट निकालेंगे। दैट्स व्हाई ट्रेनिंग एंड ऑल दीस थिंग्स आर नीडेड। सो या एक लास्ट ये लास्ट स्लाइड है, ओके ये लास्ट स्लाइड, आई वांट एवरीबॉडी टू रीड दिस स्लाइड। यहाँ पे प्रभुपाद देखिए, प्रभुपाद शुद्ध भक्त है, हम सब जानते हैं। प्रभुपाद ने क्या किया है जो किसी ने नहीं किया है, ना भूतो ना भविष्यति, ये हम सब जानते हैं, हा? लेकिन प्रभुपाद इस बारे में कभी प्रभुपाद ने कोई घमंड नहीं किया, कभी कभी अपने बारे में कहीं कुछ लिखा नहीं, मैं शुद्ध भक्त हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन किसी परपोर्ट में गलती से प्रभुपाद से कुछ निकल गया है, हा? ये जो श्लोक के परपोर्ट में जो लास्ट का पैराग्राफ है ना, यहाँ गलती से प्रभुपाद से अपने बारे में कुछ निकल गया है। अभी इसको हम पढ़ते हैं। कोई भी माइक नहीं काम कर रहा है क्या 4 स्पीकर में से? Those who think, ध्यान से सुनिए, प्रभुपाद अपने बारे में एक्चुअली बता रहे हैं, गलती से उनसे उनके बारे में निकल जा रहा है। Those who think that Krishna consciousness is limited to a certain section of people, a certain section of devotees, or a certain tract of land, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो इस्कॉन का इस बार इसको लेकर तिरस्कार करते हैं कि कैसे इस्कॉन विदेशियों को जो है सन्यासी बना, ब्राह्मण दीक्षा दे रहा, ऐसा कहता विदेशी। तो ये वही NOI 6 का प्रॉब्लम हो रहा है कि बाहरी रूप से लोग देख रहे हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं दोज हू थिंक, और ऐसे अगर आप वृंदावन वगैरह में जाओगे तो वहाँ के जो गोस्वामी लोग होते हैं, पहले के जो डिसेंडेंट्स वगैरह होते हैं, आजकल ऐसा नहीं है, आजकल सबको पता है प्रभुपाद ने क्या किया है वगैरह, आप सब समझते हैं। लेकिन पहले प्रभुपाद के समय जो प्रभुपाद अपने फॉरेन के शिष्यों को लेके आते थे ना, तो राधा रमन मंदिर में एक पुजारी जो गोस्वामी मंदिर के थे, राधा इस्कॉन के नहीं थे, राधा रमन टेम्पल में एक पुजारी थे। जब प्रभुपाद ने अपने फॉरेन शिष्यों को लाए और जब वो लोग ऐसे दर्शन करने आते थे तो इन पुजारी को बड़ा अच्छा लगा कि देखो विदेशी लोग कितने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। तो जब एक पुजारी ऐसे दंडवत किए तो उस पुजारी ने उनको आशीर्वाद दिया, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि अगले जन्म में तुम हमारे कुल में पैदा हो और अच्छे से भक्ति करो। तो ये डिसाइपल ये सब चीज़ पढ़े हुए थे, तो उनको लगा कि पता नहीं ये सही बोल रहे नहीं बोल रहे। प्रभुपाद को पता है, प्रभुपाद ने बोला जाओ उनको आशीर्वाद दे के आओ कि अगले जन्म में वो इस्कॉन में आ जाए और प्रचार कर। Anyway, point is that we have to understand what is spiritual vision. तो प्रभुपाद यहाँ क्या बोल रहे हैं, those who think, और please note, जब प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे ना विदेशों में, उनको खींचने वाले या उनको गलत बोलने वाले बहुत थे इंडिया में, इंक्लूडिंग हिज ओन गॉड ब्रदर्स, जो नहीं अप्रिशिएट कर पा रहे थे इस बात को। उनके बहुत सारे गॉड ब्रदर्स ऐसे थे जो बाहर जाके सूट बूट पहन के वापस आ गए, मतलब प्रभाव डालना तो छोड़ो, वो खुद वैसे बन के वापस आ गया। यू सी इन दैट कॉन्टेक्स्ट। और प्रभुपाद ने चिट्ठी लिख के प्रभुपाद बोल रहे थे आइए इस्कॉन को आप टेक ओवर कर लीजिए, मैं तो आप लोग का सर्वेंट हूँ, मैंने तो बस थोड़ा सा प्रचार किया, आप लोग मैनेज कर दिए, किसी ने नहीं सपोर्ट किया। और उल्टा बहुत लोग बोलते थे ये क्या कर रहे हो तुम, सन्यासी को तो समुद्र पार करके नहीं जाना होता है। अकॉर्डिंग टू वैदिक शास्त्रास सन्यासी इज नॉट सपोज्ड टू क्रॉस द ओशंस, सन्यासी इज नॉट सपोज्ड टू वियर स्टिच्ड क्लोथ्स, सन्यासी इज नॉट सपोज्ड टू ड्राइव इन व्हीकल्स। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बोला सब एक तरफ, चैतन्य महाप्रभु का मिशन एक तरफ। So now in that context, read what Prabhupada is telling. Those who think that Krishna consciousness is limited to a certain section of people, a certain section of devotees, or a certain tract of land, are generally prone to see the external features of the devotee. Such neophytes, मतलब कनिष्ठ अधिकारी, neophyte मतलब कनिष्ठ अधिकारी. Such neophytes unable to appreciate the exalted service of the advanced devotee. गलती से प्रभुपाद थोड़ा अपने बारे में बोल दे रहे हैं, नॉर्मली ऐसा बोलते नहीं है। Such neophytes unable to appreciate the exalted service of the advanced devotee try to bring the Mahabhagavat to their platform. We experience such difficulty. We experience such difficulty in propagating this Krishna consciousness all over the world. Unfortunately, we are surrounded by neophyte God brothers who do not appreciate the extraordinary activities of spreading Krishna consciousness all over the world. They simply try to bring us to their platform and they try to criticize us in every respect. We very much regret their naive activities and poor fund of knowledge. An empowered person who is actually engaged in the confidential service of the Lord should not be treated as an ordinary human being, for it is stated that unless one is empowered by Krishna, one cannot spread the Krishna consciousness movement all over the world.
His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय। और ये लास्ट स्लाइड में ये था कि उसी तरह से आप हमारे देखो इस्कॉन में आपको हर बैकग्राउंड से गुरुज मिल जाएंगे, फॉरेन बॉडीड, विलेज बैकग्राउंड, लिटरेट, इलिटरेट, इंग्लिश आती है नहीं आती है, हिंदी आती नहीं आती है। इस दृष्टि से अगर हम किसी भी गुरु को देखेंगे तो क्या कर रहे हैं? अपराध और हमारी भक्ति का सर्वनाश। क्या देखनी है? भक्ति और उनकी गुरु के प्रति निष्ठा। So that is, ये रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के 6th श्लोका में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वैदिक भक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कुछ सीनियर डिवोटीज बताते हैं कि जो 7 श्लोक हैं, अगले संडे हम क्या देखने वाले हैं? 7 श्लोक, और इससे हमारी एनवाई की सीरीज खत्म हो जाएगी। 8, 9, 10, 11 में अपने को जाने का जरूरत नहीं है, भाव भक्ति प्रेम भक्ति है, वहां भी जाएंगे थोड़ा इधर उधर गड़बड़ कर देंगे। हाँ? तो 1 से 7 कुछ भक्त बताते हैं कि हमको याद कर लेना चाहिए और डेली दोहराना चाहिए, जिससे कि हम बार बार लाइन पर रहें, कि हमारी साधना भक्ति के लिए बहुत जरूरी है वैदिक साधना भक्ति के लिए। ठीक है, तो अगले संडे 29 दिसंबर को इस साल की लास्ट क्लास होगी, लास्ट मॉर्निंग प्रोग्राम, और वो एनवाई का जो वैदिक साधना भक्ति का लास्ट श्लोक है, श्लोका नंबर 7, वो है हरि नाम के बारे में, होली नेम। साधना भक्ति तो उसके बिना पूरी होगी नहीं, इसलिए फिर रूप गोस्वामी ने वहां पे वो डाला, उसके बारे में है। और उसके बाद ये साल हम एनवाई सीरीज खत्म करके अगले साल जैसा मैंने बताया था कि हम लोग भागवतम का सीरीज शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट क्लास विल बी गिवन ऑन 5th जनवरी बाय हिज ग्रेस रश कृष्ण प्रभु। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।